Dandoti sir, Yes, sir. uh, with your permission, can I start program? Yes, sir. You can start. Continue. Okay, thank you, sir. Good morning, everyone. On the behalf of Panchuti College of Management and Computer Science and Arts Commerce Science College Manmad, I, Umesh Tupe, heartily welcome to you in the third session of our webinar. In today's session, Raspberry Pi topic with fundamental of Python language. These points are covered. So I heartily welcome to all guests as well as different faculties of various colleges and my dear students. Previous lecture, that means yesterday, we already discussed the programming and how we can perform in different practical using Arduino board. Mr. Ganesh Atare sir already told us in detail, and today our task is Raspberry Pi. Before starting the session, I request to our college vice principal and IQC coordinator, Mr. Deepak Dandurati sir, please guide us. Over to you, sir. Dandurati sir, I am audible? Yes, sir, you are audible, but don't know this, sir. Hello, sir. Okay, I'm okay, audible? sir, you are audible. Also. Yes, sir. Thank you so much, sir. I once again welcome Ganesh Atre sir for today's session. Under the electronics department, we have organized 3-day workshop from 1st June to 3rd June. Today is the last day, and it's wonderful session from 1st June to 3rd June. We have encouraged us. You have encouraged us, all the students regarding Python, Raspberry Pi, and today also I hope so. The session will be wonderful. And once again, welcome all the speakers. Ganesh sir, and thankful to the Electronic Studies Center, Nasik, director of that. And congratulations once again, Umesh Tupe sir, for arranging such a wonderful webinar. Thank you so much. Okay, thank you, sir. Now I request to today's guest, Mr. Ganesh sir, please start the session. Thank you, sir. Over to you. Yeah, thank you, sir. Thank you very much. Okay, so let's start. Again, Yes, sir. same thing. Okay. So let's start. Yesterday, actually, we have started with the embedded system definition. So what is an embedded system? It is a combination of the computer hardware and software, and then we have explored the microprocessor and microcontroller, why we generally use the microcontroller for developing the embedded product. That also we have discussed. We have discussed some different types of the microcontrollers available in the market, like 5.1, Peak, ARM, Atmega. Okay, and after that we have explored one of that embedded product microcontroller, and that is the Arduino one. Okay, because the why generally we are promoting the Arduino, because it is an open source, and it is majorly used for the academic purpose, and again for the prototyping purpose. So generally in academics, we are not focusing on the industrial product. We are focusing on the our idea implementation. If you have any idea with you, innovative idea with you, and if you want to implement that idea, then generally we are using the Arduino for that. Okay, but what is the disadvantage of Arduino? Disadvantage, actually, what are the advantage of Arduino we have seen? The advantage of Arduino is we can run that Arduino on a 5-volt. It is having some input output lines, and using that input output lines, we can interface the different sensors, actuators, analog type of sensors, digital type of sensors, analog type of actuator, digital type of actuator. That such a actuators and sensors we can interface. But according to me, actually, there is one disadvantage present for that Arduino. And what is the disadvantage? So disadvantage is if I uploaded one of the program, in the Arduino, actually, it is only able to run that program only. So only one program
or whatever the statement that we are writing into the loop function that is continuously executing, only that particular statement get executed. Okay, so whatever it means, it is just like a polling, one after another, one after another. Whatever the statement you are writing, it is get executed one after another. After completing again, it is get starting from the execution number one or the instruction number one. Okay, so according to me, actually this is the disadvantage in today's world. Actually it is the advantage, that is the same thing is your advantage when you go back to 10 years ago. Whenever suppose you want to develop a system, for controlling the washing machine. Okay, so that washing machine are continuously doing the same task. Just set a timer, and for that timer actually the continuously that motor gets spin, and after the timer get over, then that motor gets stopped. Okay, so that is the same thing they are repeating, the same thing they are repeating. But nowadays actually there is a need that the washing machine not only controlling the motor, it should not control the motor, but it should inform to the customer or to the house owner that the actually all the washing has been done, or I have started the washing machine for this much, washing machine is running for this much of time, what is the total power consumption. So it means that here we now our need is we want a smarter device. We want a smarter device, not only the traditional work that the device should be do, the some smarter work that should be do. What is the स्मार्ट वर्क करना मतलब क्या करना होगा है, फॉर एग्जाम्पल उसने क्या देना चाहिए, कितने बजे आज स्टार्ट हुआ, कितने टाइम में वो बंद हुआ, उसका पावर कंजम्पशन कितना आया, ये सब डेटा में कैलकुलेट करूंगा. एंड यूजिंग दैट डेटा एक्चुअली द फर्दर डेवलपमेंट और द फर्दर इम्प्रूवमेंट कैन बी डन on that particular washing machine. And that is the, you can give the this type of the example as a machine learning. So using this previous data, actually what we can do, we can conclude that this machine is running for this much of time, the power consumption is taking this much of time. Then can I decrease the power consumption, or can I decrease the time taken for washing that particular clothes? ये मैं कम कर सकता हूँ क्या? So I think if you have the data with us, then I can think in a some smarter way. तो अभी देखो हमारा ऐसा अभी नीड हो गया कि उसने उसका ट्रेडिशनल काम तो करना ही चाहिए, लेकिन उसने थोड़ा सा एक स्मार्टर चीज करना चाहिए. देयर आर सम स्मार्टर थिंग्स दैट शुड बी डन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. तो मतलब उसने 2 या 3 या 4 या 5, मतलब क्या है कि उसने डेटा भी अपडेट करना चाहिए, मोटर को भी कंट्रोल करना चाहिए, अपने एसएमएस भी सेंड करना चाहिए, ईमेल भी सेंड करना चाहिए, और ट्विटर के ऊपर कुछ ट्वीट भी करना चाहिए. देयर आर सम स्मार्टर डिवाइसेस नाउ that will tweet on your Twitter handle that what is the status of that particular device. For example, आपका जो फैन है वो फैन अगर ऑन हो गया तो ट्विटर हैंडल के ऊपर, आपके ट्विटर हैंडल के ऊपर आ जाएगा वहां पे फैन इज ऑन और वट एवर द मैसेज यू आर डूइंग. सो दैट इज सम स्मार्टर डिवाइसेस. तो ये 4-5 चीज अगर मुझे एक साथ करनी है तो आर्डिनो इज नॉट अ वेरी गुड चॉइस. आर्डिनो एक गुड चॉइस नहीं हो सकता. मुझे एक ही काम करना है रिपीटेडली तो आर्डिनो इज अ गुड चॉइस, लेकिन मुझे 5-6 काम, इफ आई वांट टू अचीव द मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग जस्ट लाइक योर कंप्यूटर, देन आर्डिनो डेफिनेटली नॉट अ चॉइस. तो अगर आर्डिनो ने यूज करना तो क्या करोगे? तो देयर इज, वी हैव टू सर्च फॉर द अनदर ओपन सोर्स हार्डवेयर, एक दूसरा एक ओपन सोर्स हार्डवेयर, बिकॉज इन एकेडमिक्स एक्चुअली द AICTE हैज ऑलवेज प्रमोटिंग द ओपन सोर्स हार्डवेयर एंड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. कभी भी अपना पुणे यूनिवर्सिटी इज आल्सो promoting the open source software and the open source hardware in their academics. तो हमें भी वही करना चाहिए, जो ओपन सोर्स है ना उसी को प्रमोट करना चाहिए. जो ओपन सोर्स होता है ना उसी में ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूशन होती है. जस्ट लाइक द पाइथन, टेक एग्जांपल ऑफ पाइथन. वंस दैट पाइथन बिकम अ ओपन सोर्स, क्या हुआ, पाइथन का डेवलपमेंट कितना फास्ट हुआ. Okay, once the Python become open source, the development and the contribution in the libraries of the Python get suddenly increases. बहुत सारा increase हुआ. It suddenly increases, and after that, the Python is now the #1 language. Python अभी एक number one language. In the previous 5 to 6 months ago, actually Java is #1, but now the Python becomes a #1 language in the world.
Okay, so that's why everyone wants to promote with the Python. तो हमें ऐसा कोई डिवाइस चाहिए कि ये जो Python भी सपोर्ट करेगा और मैं मल्टीटास्किंग जो मैं बोल रहा हूँ that can be also achieve or using that device. तो ऐसा कौन सा डिवाइस है, which is that particular device? वो तो डिवाइस अगर मैं देखूँ ना तो डिवाइस होता है, what is the device? The device is called as a Raspberry Pi. उसको क्या बोलते हैं? उस डिवाइस जो मैं प्रमोट करने वाला हूँ टुडे, आई एम प्रोमोटिंग दैट डिवाइस इज कॉल्ड एज अ रास्पबेरी पाई. रास्पबेरी पाई बोलते हैं. अभी रास्पबेरी पाई कभी सुना है आपने? हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड? जस्ट टाइप यस इन चैट बॉक्स अगर आपने ये सुना है ना. जस्ट टाइप यस इन चैट बॉक्स. रास्पबेरी पाई अगर आपने कभी सुना है तो जस्ट टाइप यस इन चैट बॉक्स. Yes, Nina says yes. Nitin says yes. Ankush says yes. Mohammed says yes. Only four out of 43. Only for Praveen, Tanya, yeah, Nadim. So what is this Raspberry Pi? ये Raspberry Pi क्या होता है ना, सबसे पहले हम देखेंगे what is the use of it and then we will do some programming on the Raspberry Pi itself. अभी देखो हम यहाँ पे सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, हम क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा सा एक प्रोग्राम भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रोग्राम कैसे करते हैं. सो दैट यू कैन स्टार्ट ऑन द रास्पबेरी पाई. एक्चुअली रास्पबेरी पाई अगर आप खरीद पे भी लाते हो ना तो मेजर प्रॉब्लम इज यू कैन नॉट यू आर नॉट नोइंग दैट हाउ टू डू अ प्रोग्रामिंग. उसका आर्डिनो जैसे नहीं होता कि एक आईडी डाउनलोड करो, आप प्रोग्राम करो और अपलोड करो, वैसे नहीं होता. देयर आर सम डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोग्रामिंग इज यूज फॉर द रास्पबेरी पाई. उसको क्या क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा ये सब हम आज डिस्कशन करने वाले हैं. ओके, सो व्हाट इज रास्पबेरी पाई? Actually, Raspberry Pi generally, majorly, it is developed in a United Kingdom by the Raspberry Pi Foundation. ये किस लिए यूज हो रहा है? ये अभी ये हम जो अभी यूज कर रहे हैं ना उसके लिए यूज नहीं हो रहा था. ये सब एक्चुअली द एम फॉर इन्वेंटिंग द Raspberry Pi is the Raspberry Pi Foundation wants to develop a very small computer which can be provided to the primary and secondary school. उन्होंने क्या एम किया था कि ऐसा मैं स्मॉल कंप्यूटर बनाऊंगा कि जो सेकेंडरी और प्राइमरी कॉलेजेस को या स्कूल्स को मैं दे सकता हूँ एंड दे कैन परफॉर्म द ऑल द टास्क. अभी देखो कंप्यूटर अगर सेकेंडरी कॉलेज को या सेकेंडरी स्कूल को या प्राइमरी स्कूल को अगर कंप्यूटर खरीदना है, सो द प्राइस ऑफ द कंप्यूटर इज वन कंप्यूटर इज अप टू 30,000 to 40,000. तो 30 to 40,000 एक कंप्यूटर का. कितने स्टूडेंट्स होते हैं? मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होते हैं वो प्राइमरी और सेकेंडरी में ही होते हैं बिकॉज एवरीवन आर डूइंग द प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो इतने स्टूडेंट्स के लिए इतने कंप्यूटर तो नहीं पॉसिबल है. तो अगर मैं 60 स्टूडेंट क्लास 60 का क्लास है तो 60 कंप्यूटर आई कैन नॉट अरेंज क्योंकि 60 मल्टीप्लाई बाय द 40,000 इतना मुझे फंड लगेगा एंड दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द प्राइमरी बिकॉज उसका फी भी लो होता है. ओके, तो दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल. तो रास्पबेरी पाई फाउंडेशन ने बोला कि मैं ऐसा एक छोटा कंप्यूटर बनाऊंगा कि that using that computer the primary and secondary school students can able to perform the different tasks that can be possible on your traditional computer. Getting this? तो ये ऐसा स्टार्ट हुआ. लेकिन देखो early on the Raspberry Pi project learned toward the promotion of teaching basic computer science in school and developing the country. Later the original model become far more popular than anticipating, selling outside its target market for the use as a robotics. Okay, तो ये देखो, ये अगर कोई अच्छा चीज आता है मार्केट में तो सिर्फ उसके लिए नहीं रहता, जो भी जिस पर्पस के लिए मुझे यूज करना है, सो आई कैन यूज दैट पर्टिकुलर पर्पस. तो ऐसा मुझे रोबोटिक्स में ऐसा आया कि ऐसा कोई छोटा कंप्यूटर होना चाहिए, मल्टीटास्किंग वाला चाहिए. तो रोबोटिक्स में मल्टीटास्किंग होता है. ओके, सो मल्टीटास्किंग वाला कंप्यूटर चाहिए, छोटा वाला कंप्यूटर. जनरली रोबोटिक्स में अभी तक कंप्यूटर यूज करते थे, लेकिन कंप्यूटर पूरा एवढा इतना बड़ा सीपीयू उसके अंदर रखना पॉसिबल नहीं है. सो आई नीड अ वेरी स्मॉल कंप्यूटर which can able to perform the different tasks that is applicable for the robotics. तो इसीलिए उन्होंने वो यूज करके देखा and that is very beneficial for them. So that's why they started to explore the Raspberry Pi. Now it is now widely used in many areas. बहुत सारे areas में काम करते हैं, such as weather monitoring because of its low cost and high portability. The price of the Raspberry Pi is when it is launched. Actually, when it is launched, the price is only $10. सिर्फ $10 का था. उसके बाद में उसके वर्जन्स आए, डिफरेंट वर्जन्स आए. उसका प्राइस $25 हुआ. उसके बाद में रास्पबेरी पाई 3B प्लस आया, उसका $35 हुआ. नाउ द रास्पबेरी पाई 4 is in the market. The price is up to $70. $70 का ये प्राइस है इसका.
ओके तो दिखता कैसा है नाउ दीज आर सम वेरिएंट, ये वेरिएंट है देखो, ये रास्पबेरी पाई 2 और वेरिएंट है। ओके रास्पबेरी पाई 2 सबसे पहले था रास्पबेरी पाई ए, सबसे पहले था रास्पबेरी पाई ए, उसके बाद में रास्पबेरी पाई 2 आया, रास्पबेरी पाई 2 मॉडल ए आया, उसके बाद मॉडल बी आया। सो आई एम ओनली इंक्लूडेड द पॉपुलर वन, जो पॉपुलर हुए ना वही मैंने यहाँ पे स्लाइड में इंक्लूड किए। सो दिस इज द रास्पबेरी पाई 2 वर्जन, रास्पबेरी पाई 2 मॉडल बी। अभी इसमें आप क्या क्या देख सकते हो, व्हाट यू कैन सी इनसाइड इट, ये होता है आपका इसका साइज। अगर आप देखो ना, द साइज ऑफ दिस इज ओनली अ साइज ऑफ द योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। अगर आपने देखा होगा कि आपका क्रेडिट कार्ड का साइज अगर आप देखो ना, तो ये अपना कंप्यूटर आ गया, दिस इज माय रास्पबेरी पाई। एक पूरा अगर आप डेबिट कार्ड अगर इसके में लगाओ तो सेम डेबिट कार्ड का साइज का ही कंप्यूटर है। इसमें क्या क्या है देखो, व्हाट इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या है। सो कैन यू आइडेंटिफाई दिस डिवाइस, योर पोर्ट, व्हाट इज दिस पोर्ट, कैन यू आइडेंटिफाई दिस पोर्ट। ये पोर्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जस्ट टाइप योर आंसर इन चैट बॉक्स। ये क्या है, व्हाट इज दिस, USB ये है USB पोर्ट। USB पोर्ट। मतलब क्या है, इस बोर्ड को मैं क्या क्या कनेक्ट कर सकता हूँ, आई कैन कनेक्ट दिए USB डिवाइसेस, जस्ट लाइक प्रिंटर कनेक्ट कर सकता हूँ, माउस कनेक्ट कर सकता हूँ, और अपना कीबोर्ड कनेक्ट कर सकता हूँ। इवन आई कैन कनेक्ट माय USB ड्राइव, मैं USB ड्राइव भी कनेक्ट कर सकता हूँ। सो देयर आर टोटल 4 पोर्ट्स आर देयर, 4 USB पोर्ट्स आर देयर। ओके तो USB भी कॉम्पेटिबल है। ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, व्हाट इज दिस, देखो इथरनेट केबल, इथरनेट केबल, इथरनेट पोर्ट। इज अ इथरनेट पोर्ट। मतलब क्या है कि इसको अगर मुझे इंटरनेट देना है, सो आई कैन गिव द इंटरनेट बाय यूजिंग द इथरनेट पोर्ट। लैन केबल से मैं इसको इथरनेट के थ्रू मैं इंटरनेट भी दे सकता हूँ। सो आई कैन कनेक्ट दिस बोर्ड इन अ लैन नेटवर्क, और इसको एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, एंड यूजिंग दिस आईपी एड्रेस आई कैन एक्सेस दिस बोर्ड on a whole LAN network, or otherwise I can access the internet using that particular port. मैं internet भी access कर सकता हूँ। It is not having the internet, it is having the Wi-Fi also included. It is having the Wi-Fi included. इसका अंदर खुद का एक Wi-Fi भी होता है। Okay, it supports the 802.11. This Wi-Fi protocol, it can be supported. Okay, तो इसको मैं वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकता हूँ। इसके पास इथरनेट भी है, इसके पास मतलब ये एक्चुअली ये आपका रास्पबेरी पाई 3B प्लस है। दिस इज द टाइप ऑफ द रास्पबेरी पाई 3B प्लस। तो इसके अंदर मेरा ब्लूटूथ भी है। तो मतलब देखो मैं 3 तरीके से मैं इसको इंटरनेट दे सकता हूँ। इंटरनेट के थ्रू इंटरनेट दे सकता हूँ, वाईफाई की इंटरनेट थ्रू दे सकता हूँ, और ब्लूटूथ के थ्रू भी इंटरनेट दे सकता हूँ। ओके तो ये देखो एडवांटेज, सेम लाइक योर कंप्यूटर, कंप्यूटर को भी वैसे ही होता है। कंप्यूटर इज हैविंग द USB, कंप्यूटर इज हैविंग द इथरनेट, कंप्यूटर इज हैविंग द वाईफाई, कंप्यूटर इज हैविंग द ब्लूटूथ, सब कुछ है। ओके अभी सब आप बोलोगे सर मैंने माउस लगा दिया, कीबोर्ड लगा दिया, सब कुछ लगा दिया, इंटरनेट भी लगा दिया, लेकिन डिस्प्ले कहाँ पे लगाऊंगा, मॉनिटर होगा ना मेरा, तो मॉनिटर में कहाँ पे कनेक्ट करूंगा। तो यहाँ पे एक दिया है देखो। सो हिदी व्हाट इज दिस केबल कॉल्ड, ये केबल जो है ना, HDMI it is called as a HDMI cable. Yes नितिन, it is called as a HDMI cable. तो HDMI केबल होता है, जैसे कि मेरा एक ये केबल है देखो, दिस द केबल, ये केबल मेरा अपने मेरे नजदीक में यहाँ पे एक मॉनिटर रखा है। तो मैं क्या करूंगा, अगर इसका जो आउटपुट है, इसका आउटपुट है जो मुझे मॉनिटर के ऊपर देखना है, तो मैं क्या करूंगा, ये HDMI केबल यहाँ पे लगा दूंगा। बट मेक श्योर दैट योर मॉनिटर इज HDMI compatible। अगर HDMI compatible है तभी आप कनेक्ट कर सकते हो। But if your monitor, most of the monitors are not HDMI compatible. Most of your college computers are not the HDMI compatible. तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? What we can do? Can anyone tell me? मेरे पास HDMI we can use the converter. You can use converter, yes. अभी जनरली अपना जो अपना मॉनिटर होता है, उसका आउटपुट, उसका इनपुट क्या होता है, जनरली होता है VGA इनपुट होता है। देखो VGA सीरियल वाला जो होता है ना, दैट इज अ VGA इनपुट। तो VGA इनपुट होता है, तो हमें मेरे पास है HDMI, तो आई नीड टू बाय अ HDMI टू VGA कन्वर्टर। तो HDMI टू VGA कन्वर्टर तो क्या हो जाएगा, मेरे मॉनिटर के ऊपर अगर VGA है तो आई कैन डिस्प्ले दैट VGA आल्सो, गेटिंग दिस। तो ये मुझे लगेगा, देखो डिस्प्ले के लिए ये पोर्ट लगा। अभी मुझे ऑडियो भी चाहिए, डिस्प्ले, अभी ऑडियो तो मैं HDMI से भी ऑडियो ले सकता हूँ, बिकॉज HDMI सपोर्ट दे वीडियो एज वेल एज द ऑडियो, वीडियो भी सपोर्ट करता है, ऑडियो भी सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ VGA वाला मॉनिटर है और आपको आउटपुट ऑडियो चाहिए दूसरी जगह, फॉर एग्जाम्पल आपका एक स्पीकर है, स्पीकर को अभी आपको और इसका आउटपुट देना है, तो कैसे दोगे,
तो यहाँ पे एक देखो ये 3.5 जैक का एक यहाँ पे कनेक्टर दिया, 3.5 जैक का कनेक्टर दिया है. So using this 3.5 jack connector, I can connect the speaker to this also. So when I'm playing some songs on the Raspberry Pi, actually I can play the songs on Raspberry Pi. Okay, तो जैसे VLC के ऊपर मैंने कुछ प्ले कर दिया, तो सपोज YouTube के ऊपर कुछ प्ले किया, तो जो उसका आवाज है ना यहाँ से आ सकता है. ओके, और HDMI से, HDMI कनेक्ट है तो HDMI से आएगा, अगर इसके ऊपर कनेक्ट है तो इसके ऊपर से आएगा. आर यू गेटिंग दिस? समझ में आया? अभी देखो आप देख सकते हो कि ये इट इज द वेरी सेम इंटरफेस दैट आवर कंप्यूटर इज हैविंग. कंप्यूटर के पास जो भी इंटरफेस होती है ना, सेम इंटरफेस इट इज हैविंग. और क्या है, और क्या है इसके पास, ये देखो, ये इट इज कॉल्ड एज अ कैमरा कनेक्टर. इसका एक कैमरा कनेक्टर का इंटरफेस दिया है. इसका एक खुद का एक कैमरा आता है, उसको बोलते हैं रास्पबेरी पाई कैमरा. ओके, तो वो इसकी एक वायर होती है, वायर वी हैव टू इंसर्ट हियर. वायर हमने वहां पे इंसर्ट कर दिया, तो दैट कैमरा, यूजिंग दैट कैमरा I can access the its camera, like मैं फोटो ले सकता हूँ, मैं वीडियो निकाल सकता हूँ, कैमरा से मैं जो काम कर सकता हूँ सब कुछ मैं कर सकता हूँ. गेटिंग दिस? तो यूएसबी कैमरा इज आल्सो इट सपोर्ट्स. यूएसबी कैमरा भी सपोर्ट करता है. अगर यूएसबी कैमरा है आपका, वेब कैमरा है, तो वेब कैमरा आल्सो यू कैन कनेक्ट हियर. अगर रास्पबेरी पाई कैमरा है तो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो. दिस इज योर मेन आईसी. दिस इज द मेन आईसी. ये माइक्रो कंट्रोलर है. कौन सा माइक्रो कंट्रोलर है? डिपेंडिंग ऑन योर विच वर्जन यू आर यूजिंग. ये कौन सा वर्जन यूज कर रहे हो ना, उसके हिसाब से इसका नाम डिसाइड होगा. मैं अभी आपको दिखाऊंगा कौन सा वर्जन है. आर यू गेटिंग दिस? अभी ये क्या है? टेल मी व्हाट इज दिस? ये क्या है? व्हाट इज दिस? आप देख सकते हो ये क्या है? व्हाट इज दिस? Pins. ये क्या है? ये पिन से सिंपल है. ये क्या, इसको बोलेंगे हम GPIO पिन. इसको क्या बोलेंगे हम? GPIO पिन. जैसे कि हमने आर्डिनो में कल देखा, देखो पिन नंबर 0 टू पिन नंबर 13, दैट इज कॉल्ड एज अ GPIO, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट. ओके, तो जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट. तो इसमें देखो रास्पबेरी पाई जो फेमस हुआ, उसका एक मेन रीजन है कि इट इज हैविंग द GPIO एसोसिएटेड विथ इट. उसका खुद का एक GPIO का एक एरे दिया है, देखो. So using this GPIO, I can connect to any device, just like LED, LCD या switch, कोई भी एक सेंसर, डिजिटल IR सेंसर, मोशन सेंसर. I can connect that particular devices on these particular pins and I can do whatever I want. जो भी मेरा आइडिया है ना, वो मैं आइडिया इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. ओके, तो आज हम ये देखने वाले कि इसके ऊपर हम पिंस कैसे करेंगे और इसके ऊपर प्रोग्राम भी कैसे करेंगे, ये भी हम देखने वाले हैं. आर यू गेटिंग दिस? तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये आप बोल सकते हो कि ये क्या है? इट इज रास्पबेरी पाई, या यू कैन से इट इज अ मिनी कंप्यूटर. ये है मेरा मिनी कंप्यूटर. उसके अंदर मैं USB लगा सकता हूँ, इंटरनेट लगा सकता हूँ, डिस्प्ले भी है मेरे पास, कीबोर्ड माउस लगा सकता हूँ. ऑल थिंग्स आई कैन कनेक्ट. सो दिस इज जस्ट लाइक योर मिनी कंप्यूटर. इसका डिस्प्ले भी मैं दिखाने वाला हूँ आपको. ऑन करेंगे हम, और ऑन करने के बाद में इसका डिस्प्ले भी हम दिखाएंगे. अब इसको पावर कहाँ पे देंगे, पावर कैसे देंगे? जैसे कंप्यूटर होता है आपका, PC होता है, PC को उसका खुद का SMPS होता है. PC इज हैविंग इट्स ओन SMPS. तो इसका भी खुद का SMPS होना चाहिए. तो इसका SMPS नहीं होता तो हमें वो एक्सटर्नली प्रोवाइड करना होता है. दिस रास्पबेरी पाई इज वर्किंग ऑन 5 वोल्ट. ये 5 वोल्ट के ऊपर काम करता है, मतलब इट रिक्वायर्स द 5 वोल्ट. एक्चुअली इंटरनली इट वर्क्स ऑन 3.3 वोल्ट ओनली. इंटरनली कितने काम करता है? इट इज अ लो पावर डिवाइस. तो लो पावर डिवाइस, ऑल द लो पावर डिवाइसेस आर वर्किंग ऑन 3.3 वोल्ट. लेकिन उसको इनपुट कितना लगता है? इनपुट लगता है 5 वोल्ट का इनपुट लगता है. सो आई मस्ट हैव वन ऑफ द पावर अडेप्टर. मेरे पास एक पावर अडेप्टर चाहिए कि वो क्या होगा, ये क्या होगा? यू कैन सी दिस इज द रास्पबेरी पाई पावर अडेप्टर. दिस इज द रास्पबेरी पाई पावर अडेप्टर. ओके, तो इसका स्पेसिफिकेशन दिया, देखो 5 वोल्ट और 2.5 एम्पियर. 5 वोल्ट एंड 2.5 एम्पियर. तो ये आपको लगेगा. You need this power adapter to power on this board. Okay, तो USB पावर सप्लाई अगर आपके पास है, सिर्फ आपको ये चाहिए कि 2 एम्पियर से ऊपर थोड़ा चाहिए. 2 एम्पियर से ऊपर, 2 एम्पियर का पावर अडेप्टर है आपके पास. तो ये पिन अगर आप देखो पावर का, तो इट इज वेरी सिमिलर लाइक योर ओल्ड USB चार्जिंग केबल. ये ओल्ड चार्जिंग केबल थी ना, अभी टाइप C की नहीं, टाइप B का. तो वो जो थे ना, ये चार्जिंग केबल से हम क्या कर सकते हैं, इसमें पावर दे सकते हैं. वी कैन गिव द पावर टू दिस आल्सो. ओके, तो देखो पावर भी हो गया मेरा. तो पावर से 5 वोल्ट के ऊपर काम कर रहा है. देखो 5 वोल्ट मेरे पास है, तो डायरेक्टली आई कैन. अगर मेरे पास एक पावर बैकअप है, ओके, इफ आई हैव द बैटरी बैकअप विथ
with me. So using that battery backup also I can run this mini computer. और आप आपका घर पे लाइट नहीं है ना तभी भी चलेगा. Using the power backup I can. इसका power consumption कितना है? Power consumption, so it can consume up to the 700 milliampere. Maximum कितना है? 700 milliampere. Normal होता है depending on what task it is performing. इसके अंदर कितना difficult task चल रहा है ना, तो normal होता है 700 milliampere. अगर इसमें image processing का कुछ काम चल रहा है तो इसमें पावर कंजम्पशन गेट इंक्रीजेस अप टू द 1.5 एम्पियर तक भी जा सकता है. तो जैसे पावर कंजम्पशन आता है ना, इट गेट हीटेड. ये जो आपका माइक्रो प्रोसेसर होता है ना, माइक्रो कंट्रोलर होता है, ये हीट होने लगता है. तो जनरली क्या करते हैं, अगर आपको हाई पावर कंप्यूटिंग के लिए अगर यहाँ रास्पबेरी पाई यूज करना है, सो यू शुड यूज हियर द कूलिंग फैन. आपको यहाँ पे कूलिंग फैन बिठाना पड़ता है, कूलिंग फैन. गेटिंग दिस, कूलिंग फैन, या यहाँ पे हीट सिंक बिठाना पड़ता है, हीट सिंक एंड कूलिंग फैन अगर है आपके पास, तो यू कैन रन द मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम ऑन द रास्पबेरी पाई आल्सो. आर यू गेटिंग दिस? अभी ये क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीटास्किंग भी करने वाले, एक साथ 4-5 काम चलेगा, बहुत सारे काम हम यहाँ पे करने वाले. यस, सो एनी डाउट इन दिस? देखो हमने अभी क्या कर लिया, इट इज हैविंग द GPIO, इट इज हैविंग द USB, इट इज हैविंग द ईथरनेट, इट इज हैविंग द वाईफाई, इट इज हैविंग ब्लूटूथ, इट इज हैविंग कैमरा adapter, it is having the HDMI connector, it is having the audio connector, it is having the power adapter, बहुत सारा चीज. It is having the lots of, so I can compare this with the Arduino के पास इसमें से कितना था, सिर्फ GPIO था, बाकी का कुछ नहीं था. ओके तो और अभी ये बोलो कि सर इसके अंदर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होगा. अभी Arduino के अंदर तो कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रहता, क्योंकि उसमें एक ही काम करना होता है. इफ यू वांट टू अचीव द मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग, ये अगर आपको सब्जेक्ट में अगर पढ़े होगे आपने, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, इट मैनेजेस द हार्डवेयर, इट मैनेजेस द हार्डवेयर. हार्डवेयर मैनेज करता है फॉर द डिफरेंट प्रोसेस. आपको अगर मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है, तो वो हर एक प्रोसेस को कौन सा हार्डवेयर मिलेगा, ये कौन डिसाइड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है. तो यहाँ पे भी लॉट्स ऑफ हार्डवेयर आर देयर. So to access this hardware, actually there should be having some operating system installed in this computer. इसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना जरूरी है. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कहाँ पे करते हैं जनरली इन कंप्यूटर? टेल मी. जनरली मेरे पास जो अगर मैंने कंप्यूटर लाया, तो उसके अंदर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, तो मैं किसके अंदर इंस्टॉल करता हूँ? हार्ड डिस्क. हार्ड डिस्क में. एकदम सिंपल, आई एम इंस्टॉलिंग द हार्ड डिस्क. तो इसका भी तो कोई हार्ड डिस्क चाहिए कि नहीं, इसका भी खुद का हार्ड डिस्क चाहिए कि नहीं. तो हार्ड डिस्क इसके पास नहीं होता. इट इज नॉट हैविंग द इनबिल्ट हार्ड डिस्क और इनबिल्ट रॉम मेमोरी बोलते हैं इसको. इट इज नॉट हैविंग द इनबिल्ट रॉम मेमोरी. तो ये रॉम मेमोरी नहीं है, तो उसको एक्सटर्नली देना पड़ेगा. तो एक्सटर्नली कहाँ से दोगे? तो आप यहाँ पे देखो, यू कैन सी हियर देयर इज अ SD कार्ड. ये देखो, ये दिस इज SD कार्ड, जादू, ये SD कार्ड है. तो SD कार्ड अगर आपके पास है, तो यू इन दैट SD कार्ड नाउ यू कैन यूज दिस SD कार्ड एज अ हार्ड डिस्क. ये जो SD कार्ड है ना, ये आप एज अ हार्ड डिस्क आप यूज कर सकते हो. अभी कितने GB का है? इफ यू आर एबल टू रीड दिस, कितने का है? 16 GB. कितने का है? 16 GB. यू कैन इंस्टॉल अप टू 32 GB. रास्पबेरी पाई 4 में तो 64 GB भी पॉसिबल है, बट फॉर रास्पबेरी पाई 3 अप टू 32 GB इज सपोर्टेड. ओके तो ये देखो 16 GB का मैंने SD कार्ड है. इसमें मैंने एक रास्पबियन OS डाला है. वो कहाँ से डाउनलोड करते हैं वो भी मैं बताऊंगा. ये रास्पबियन OS कहाँ से डाउनलोड करते हैं, उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, ये सब मैं बताने वाला हूँ. सो दिस, इफ आई हैव डाउनलोडेड द रास्पबियन OS इज द लिनक्स बेस्ड OS. लिनक्स बेस्ड होता है. अगर आपने लिनक्स ऑपरेटिंग, हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? कितने लोगों ने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है? Just type Linux in chat box if you have used the. Nitin Naik has used Linux. Praveen Singh, Tushar Shinde, Linux. तो देखो लिनक्स मोस्टली क्यों यूज करते हैं? एकेडमिक्स में हमें लिनक्स से यूज करने के लिए बोलते हैं. क्यों? बिकॉज इट इज ओपन सोर्स ही मैक्सिमम यूज करना चाहिए. तो देखो ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको बोलते हैं रास्पबियन OS. तो ये रास्पबियन OS इसके अंदर इंस्टॉल है. हमें क्या करना होता है? सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है लिनक्स को. वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने डाउनलोड किया इंटरनेट से, उसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है. आफ्टर कॉपी पेस्ट यू हैव टू इंसर्ट इट इन द इस SD कार्ड मॉड्यूल. ये SD कार्ड मॉड्यूल के अंदर इसको इंसर्ट करो एंड गिव द पावर सप्लाई. इसको पावर सप्लाई दे दो एंड नाउ द इंस्टॉलेशन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम गेट स्टार्टेड. फर्स्ट टाइम, एक फर्स्ट टाइम ही होगा सिर्फ.
जब आप नया SD कार्ड इसमें डालोगे ना तो क्या होगा, द न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम गेट स्टार्ट न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम गेट स्टार्ट इंस्टॉलिंग इन दिस SD कार्ड के अंदर नया ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दे। अगर बाद में अगर आपने इंस्टॉल किया और आपने ये निकाल के रख दिया और दूसरा लाया तो नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा। लेकिन ये पुराना वाला अगर फिर से लगा दिया ना तो आपको प्रीवियस वाला जो कंटेंट है पूरा का पूरा इसमें मिलेगा, प्रीवियस वाला कंटेंट। तो हम वैसे ही करते हैं जनरली उसके डेवलपमेंट के लिए। सपोज देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोजेक्ट्स दैट आर रनिंग, तो हम हर के लिए एक नया माइक्रो कंट्रोलर या रास्पबेरी पाई नहीं यूज करते, एक ही माइक्रो कंट्रोलर लगाया होता है और हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट 1 का SD कार्ड ये है, प्रोजेक्ट 2 का SD कार्ड ये है, प्रोजेक्ट 3 का SD कार्ड ये है। अगर आपको प्रोजेक्ट वाइज अगर SD कार्ड चाहिए तो आप प्रोजेक्ट वाइज SD कार्ड करो और आप SD कार्ड को सिर्फ संभालना है। ये क्या है, ये रनिंग वाला डिवाइस है, ये आपका SD कार्ड को रन करेगा। आर यू गेटिंग दिस? यस। तो ये देखो, ये जो वर्जन यहाँ पे दिखाया दिया है तो दैट इज कॉल्ड एज रास्पबेरी पाई 2 वर्जन। ओके, ये है रास्पबेरी पाई 3B, नाम दिए देखो रास्पबेरी पाई 3B। देयर आर सम एक्चुअली मॉडिफिकेशन, जैसे कि रास्पबेरी पाई 2 इज वर्किंग ऑन अ 512 रैम, इसके अंदर 512 MB का रैम था। अभी रास्पबेरी पाई 3 में 1 GB का रैम आ गया, 1 GB का रैम आ गया, एंड देयर इज अ चेंज इन द माइक्रो कंट्रोलर आल्सो। ओके, ये है रास्पबेरी पाई 3B प्लस, ये 3B था, ये भी 3B प्लस। ये हो गया 4B, ये 4B अभी ये लेटेस्ट आया है। इट इज आल्सो सपोर्टिंग द USB 3.0। जो प्रीवियस वाले थे वो USB 2.0 यूज सपोर्ट करते थे। इट इज हैविंग द USB 3.0। USB 3.0 का एडवांटेज क्या है, द मोर फास्टर डेटा रेट, आप ज्यादा जल्दी आप कॉपी कर सकते हो कोई भी डेटा। सो दिस इज रास्पबेरी पाई 4। अभी देखो ये रास्पबेरी पाई 4 का थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है कि इसके अंदर क्या क्या है। ऑलरेडी वी हैव सीन दिस, लेकिन फिर से देख लेते हैं। इसके अंदर ये देखो 40 डिजिटल GPIO पिन है, कितने 40 डिजिटल पिंस। ओके, ये पावर ओवर इथरनेट हेडर पिंस दिए है, यहाँ पे गीगाबिट इथरनेट दिया है, 2 USB पोर्ट दिया है 3.0 का और 2 USB पोर्ट 2.0 का दिया है। ये है ऑडियो प्लस वीडियो कंपोजिट 3.5 जैक का पिन दिया है। यहाँ पे एक कैमरा इंटरफेस भी दिया है और यहाँ पे अभी नया आ गया है, देखो यार। प्रीवियस जो था इसमें एक HDMI कनेक्टर था, वो बड़ा वाला HDMI कनेक्टर था। इसमें क्या क्या मिनी HDMI कनेक्टर डाल दिया मिनी, और वो भी 2 डाल दिए। सो इट इज अ माइक्रो HDMI पोर्ट। अभी आपके पास अगर मॉनिटर है HDMI वाला तो उसके अंदर तो ये नहीं आएगा, तो हमें सिंपल है, हमें क्या कन्वर्टर लगेगा, माइक्रो HDMI टू HDMI कन्वर्टर। ओके, माइक्रो HDMI टू HDMI कन्वर्टर। ओके, तो इट सपोर्ट द ड्यूअल डिस्प्ले, 2 डिस्प्ले भी सपोर्ट करता है। और इसमें थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर दिया, देखो जो प्रीवियस वाला था USB, वो अपना एंड्रॉइड का मोबाइल का था। अभी नए एंड्रॉइड मोबाइल आती है देखो टाइप C के, उसके पावर रहती है, दैट इज नाउ सपोर्टेड बाय द रास्पबेरी पाई 4। और करंट क्या कितना आ गया, 3 एम्पियर और 15 वैट, 3 एम्पियर और 15 वैट का पावर अडेप्टर यू नीड हियर। ओके, पावर LED दिया है, एक्टिविटी इंडिकेटर दिया है, माइक्रो SD कार्ड स्लॉट दिया है, PCB एंटीना दिया है। ये देखो गीगाबिट यहाँ पे जो है ब्लूटूथ और वाईफाई का एक सेपरेट चिप यहाँ पे दिया है। और जो IC होता है इसके अंदर, वो IC का नाम है BCM2711। द माइक्रो कंट्रोलर इज द BCM2711 quad core Cortex A72 having the data rate of the 64-bit and the speed is 1.5 gigahertz. You can compare this 1.5 gigahertz और अपना Arduino था 16 megahertz, so it is very faster than the Arduino. So and it is having the SD-RAM, इसके अंदर SD-RAM रहती है। 4 वेरिएंट में आता है रास्पबेरी पाई 4, एक 1 GB में आता है, एक 2 GB में आता है, एक 4 GB में आता है, और अभी लॉन्च हुआ 2020 में 8 GB रैम। ओके, 8 GB रैम भी इसके अंदर आता है। तो डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट, आपके एप्लीकेशन के उसके हिसाब से आपको रैम वेरिएंट लेना है। जैसे कि आपको अभी क्या करना है कि एक इमेज प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट आपको इसके ऊपर रन करना है, सो यू नीड अ मोर रैम, तो आप 4 GB या 8 GB तक जा सकते हो। लेकिन आपको छोटा सा, अगर आपको क्या करना है, सिर्फ सेंसर है, सेंसर से डेटा लेना है और वहां पे तो अपलोड करना है, सो हार्डली 1 GB के ऊपर भी आपका काम हो जाएगा। ओके, सो आर यू गेटिंग दिस? अभी देखो आप बोले कि सर ये रास्पबेरी पाई 4 भी ना, रास्पबेरी पाई 4
या रास्पबेरी पाई 3 है ना, ये क्रेडिट कार्ड साइज का है सर, ये भी मुझे बड़ा हो रहा है। इसका प्राइस अगर मैं देखूं ना तो रास्पबेरी पाई 3B प्लस का प्राइस होता है 3200। इसका प्राइस कितना है 3200, सिर्फ बेयर प्राइस विदाउट एसडी कार्ड, बेयर प्राइस। इसके अंदर पावर सप्लाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर ये छोड़ दूं, ये निकाल दूं, तो इसका प्राइस है 3200 रुपीज। ओके, बाकी के एक्सटर्नल एक्सेसरी अलग से आती है। ओके, तो बोलो कि सर ये तो मेरे प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ा हो रहा है, छोटा छोटा रास्पबेरी पाई नहीं आता क्या? तो आता है, छोटा रास्पबेरी पाई भी आता है। सो दिस इज द स्मॉल रास्पबेरी पाई। देखो साइज कंपैरिजन आप कर सकते हो, छोटा सा साइज रास्पबेरी पाई। दिस इज कॉल्ड एज द रास्पबेरी पाई 0। इसको हम क्या बोलेंगे? रास्पबेरी पाई 0। अभी आप बोल सकते हो कि इसका मिनी वर्जन ये है, इसका मिनी वर्जन ये है रास्पबेरी पाई 0। इसमें दो टाइप आते हैं, रास्पबेरी पाई 0 और रास्पबेरी पाई 0W। ओके, अभी 0 मतलब क्या है कि विदाउट वाईफाई, और 0W मतलब क्या है कि विथ वाईफाई। ये विथ वाईफाई भी आता है, मतलब वी कैन यूज दिस रास्पबेरी पाई ओवर दी वाईफाई आल्सो। तो रास्पबेरी पाई 0W अगर आप खरीदोगे तो प्राइस इज नियरली इक्वल टू 1200। कितने रुपए का? 1200 का। देखो 1200 रुपए का ये है, और ये कितने का है? 3200 रुपए का। तो यू कैन सी द प्राइस डिफरेंस। वाईफाई का जरूरी नहीं है, वाईफाई अगर नहीं लगता तो प्राइस 0 से रास्पबेरी पाई 0 दो। रास्पबेरी पाई 0 का प्राइस होता है 800 रुपीज। 800 रुपीज में आपको पूरा मिल जाएगा, 800 रुपीज में। आर यू गेटिंग दिस? तो इस तरीके से डिपेंडिंग ऑन द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी होगा कि आपको कौन सा रास्पबेरी पाई यूज कर रही है। ऐसे नहीं कि रास्पबेरी 4 ही यूज करना है, यू कैन इवन यूज द रास्पबेरी पाई 2 आल्सो, 3 आल्सो। आपका कितना यूज है, आपका कितना पावर लेना, कंप्यूटिंग पावर कितना चाहिए, इसके हिसाब से आपको रास्पबेरी पाई का पर्टिकुलर मॉडल आपको सिलेक्ट करना है। सो आर यू गेटिंग दिस? सो दिस इज द रास्पबेरी पाई 0W। देखो इसमें जीपीआईओ हेडर पिंस भी दिए, वायरलेस लैन दिया है और ब्लूटूथ भी दिया है। देखो यहाँ पे दो यूएसबी दिए होते हैं, माइक्रो यूएसबी। एक होता है पावर के लिए और एक होता है डेटा के लिए। मतलब आपको कोई पेन ड्राइव लगाना है इसको, तो पेन ड्राइव भी लगा सकते हो बाय यूजिंग माइक्रो यूएसबी। जस्ट लाइक आपके एंड्रॉइड फोन के ऊपर अगर माइक्रो यूएसबी है, उसको पेन ड्राइव लगाना है तो आपको एक कन्वर्टर लगता है, माइक्रो यूएसबी टू यूएसबी कन्वर्टर। तो यूजिंग दैट कन्वर्टर यू कैन कनेक्ट। हियर इट इज अ मिनी एचडीएमआई कनेक्टर इज गियर, इन मिनी एचडीएमआई दिया है। देखो तो मिनी एचडीएमआई टू आपका जो रेगुलर एचडीएमआई उसका कन्वर्टर इसको लगेगा। यहाँ पे एक एसडी कार्ड स्लॉट दिया है, you can connect the HDMI your SD card on this slot, और उसके अंदर क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। रिमेंबर दैट एवरी रास्पबेरी पाई रिक्वायर द ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी इंस्टॉल। रास्पबेरी पाई के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो मतलब आप उसको यूज नहीं कर सकते। इसके अंदर जो सीपीयू है 1 गीगाहर्ट्ज का आता है, और रैम कितना आता है? 512 MB का रैम आता है। सो क्वाइट एक्चुअली स्लो चलता है। आई एम नॉट प्रेफर्ड दिस रास्पबेरी पाई 0 फॉर एडी प्रोजेक्ट। मैं कभी भी प्रेफर नहीं करता, बट सम स्मॉल प्रोजेक्ट्स आर देयर। छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, देखो कि जो काम आर्डिनो से मैं कर सकता हूँ वही काम मुझे रास्पबेरी पाई से करना है। सिर्फ क्यों? क्योंकि सर लोगों ने बोला है। काफी लोग ऐसे बोलते कि सर कि हमारे कॉलेज में ना रास्पबेरी पाई यूज करके ही प्रोजेक्ट बोला है। मैं बोल रहा हूँ कि रास्पबेरी पाई इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी नहीं है, आर्डिनो में काम हो जाएगा, तो व्हाई यू आर वेस्टिंग योर मनी? तो बोल नहीं सर ने बोला है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? ओके, रास्पबेरी पाई तो 3 मत लो। रास्पबेरी पाई 3 लिया तो आपको 3200 रुपए खरीद, आपको वेस्ट जाएगा। इससे अच्छा है कि रास्पबेरी पाई 0 लो। रास्पबेरी पाई 0 अगर लेते हो तो आपको 800 रुपए में काम आ जाएगा, 800 रुपए में काम हो जाएगा। ओके, सो तो अगर आर्डिनो का रिप्लेसमेंट अगर चाहिए आपको तो रास्पबेरी पाई 0 इज द बेस्ट। तो इसके पिन आउट देख लेते हैं हम। इसका पिन आउट क्या क्या है? देखो 40 पिन का एक 40 पिन का जीपीआईओ हेडर दिए, 40 पिन का जीपीआईओ हेडर दिए। उसमें से हर एक पिन जीपीआईओ नहीं होता, एवरी पिन इज नॉट अ जीपीआईओ। तो कौन सा पिन का काम क्या है ये सब यहाँ पे दिया है। देखो वो पिन नंबर 1 इज प्रोवाइडिंग 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई, पिन नंबर 2 प्रोवाइडिंग 5 वोल्ट पावर सप्लाई। जिस तरीके से यहाँ पे हर एक पिन का उसका डिस्क्रिप्शन दिया है। जैसे कि मैं अगर इफ आई एम सर्चिंग फॉर जीपीआईओ ओनली, जीपीआईओ मतलब जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट, जहाँ पे मैं एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट कर सकता हूँ। तो देखो आप देख सकते हो पिन नंबर 8 है, पिन नंबर 10 है, पिन नंबर 12 है, पिन नंबर 3 है, 5 है, 7 है, 17, 11, 13, 15 ये दिया है। देखो and also if you can see here it supports the different protocols, serial protocol like it support RS-232। यहाँ पे देखो TXD RXD दिया है, इसको इस सपोर्ट I2C भी सपोर्ट करता है, जैसे SDA SCL दिया है। इट सपोर्ट द SPI also, जैसे MOSI MISO ये भी दिया है।
So all types of the serial programming or serial communication it is supporting. Are you getting this? समझ में आ रहा है? It also supporting the PWM also. देखो PWM0, PWM1 ये भी इसमें दिया है. Yes, are you getting this? इसका एडवांटेज में यहाँ पे क्या है, थ्योरी है, लेकिन थ्योरी बोरिंग होती है, लेकिन ये थ्योरी बोरिंग नहीं है. अगर ये आपको पता नहीं है, सो यू कांट डायरेक्टली स्टार्ट विद द प्रोग्रामिंग. लेकिन आपको देखो, मुझे एलईडी इंटरफेस करना है. एलईडी इंटरफेस करने के लिए मैं कहाँ पे कनेक्ट करूंगा वायर, वो तो पता होना चाहिए. फॉर एग्जांपल एलईडी का कैथोड है, कैथोड मुझे ग्राउंड को कनेक्ट करना है, तो मुझे पता होना चाहिए कि विच पिन इज द ग्राउंड पिन, विच पिन. तो पिन नंबर 6, पिन नंबर 14, पिन नंबर 20, pin number 30, pin number 34, pin number 39, pin number 25, pin number 9. Okay, these are the ground pins. 5 volt कौन से मुझे पता होना चाहिए. तो पिन नंबर 2 and पिन नंबर 4 is the 5 volt का. 3.3 volt कौन सा है वो मुझे पता होना चाहिए. So this pinout diagram you should have with you. Otherwise आपको उसका प्रिंट आउट लेके रखना है, and using that printout you can start. क्योंकि अभी आर्डिनो के अंदर हर एक पिन के आगे उसका नाम लिखा होता है. रास्पबेरी पाई में ऐसा नहीं लिखा होता. रास्पबेरी पाई इज नॉट हैविंग दैट, क्योंकि वहां पे प्रिंट करने की कोई जगह ही नहीं है. प्रिंट करने की वहां पे कोई जगह नहीं, तो उन्होंने प्रिंट नहीं किया है. ओके, तो आपको एक डेटा शीट आपको यहाँ से और रास्पबेरी पाई पिन आउट ऐसे सर्च करो, एंड यू कैन गेट दिस डायग्राम, एंड यूजिंग दिस डायग्राम यू कैन मेक द कनेक्शन इजीली. अभी नेक्स्ट हम अभी एक थोड़ा सा एक वीडियो है, 10 मिनट का वीडियो है, वो हम यहाँ पे देखेंगे एक्चुअली रास्पबेरी पाई इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं. रास्पबेरी पाई इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या लगता है, आपको क्या एक्सटर्नली आपको खरीदना पड़ेगा, ये सब प्रोसेस इस वीडियो में दिया है. ये आई कैन शो यू दिस ऑल्सो, लेकिन रास्पबेरी पाई इंस्टॉलेशन इट टेक्स द 30 to 45 मिनट्स. तो 30-40 मिनट हमें यहाँ पे वेस्ट नहीं करने, इसीलिए हम एक वीडियो देखेंगे. इन दिस वीडियो एक्चुअली ऑल द प्रोसेस हैज बीन एक्सप्लेन. ओके, सो आई एम प्लेइंग दिस वीडियो. जस्ट टेक अ नोट इफ यू वांट. अगर आपको इसके अंदर सही से काम करना है तो पूरा नोट लेना है कि रास्पबेरी पाई को इंस्टॉलेशन करने के लिए मुझे क्या क्या लगेगा. ओके. Hi, my name is Ian Buckley and you are watching MakeUseOf.com. Today's video is about the Raspberry Pi. If you've just got one of these and you've got no idea what to do next, this video is for you. Today we're going to take you through putting an operating system on the Pi, setting it up for the first time, and a few handy tips and tricks that will hopefully help you out in the future. So let's get started. For this tutorial today we're going to need a few things as well as the Raspberry Pi. We're going to need to power it, so we'll be using a micro USB cord for that. This needs to be plugged into something that is 5 volts and at least 2 amps. तो यहाँ पे देखो उन्होंने क्या क्या है, आपको पास मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए. मिनिमम रिक्वायरमेंट रास्पबेरी पाई होना चाहिए, एक एसडी कार्ड होना चाहिए, एसडी कार्ड रीडर होना चाहिए, यूएसबी भी चलेगा, लेकिन ये अगर ये पोर्ट आपके लैपटॉप को नहीं है तो यूएसबी रीडर भी चलेगा. उसके बाद आपके पास माउस होना चाहिए, उसके बाद कीबोर्ड होना चाहिए और एक मॉनिटर होना चाहिए, और ये केबल्स होनी चाहिए, जैसे एचडीएमआई केबल होना चाहिए. और ये क्या है, आपका पावर सप्लाई देने के लिए ये आपका टाइप सी माइक्रो यूएसडी कार्ड का ये आपका केबल भी होना चाहिए. माइक्रो यूएसडी कार्ड नहीं, माइक्रो यूएसबी केबल भी आपको होना चाहिए. ओके, और उन्होंने बोला कि पावर अडेप्टर कितना चाहिए, इट मस्ट बी हैव 5 volt and the 2 ampere. 5 volt 2 ampere is the power rating for the adapter. For this tutorial today we're going to need a few things as well as the Raspberry Pi. We're going to need to power it, so we'll be using a micro USB cord for that. This needs to be plugged into something that is 5 volts and at least 2 amps. The official Raspberry Pi power supply is highly recommended. I'll be using my home power supply today. We'll also need a USB mouse and keyboard, which will attach to the USB ports of the Raspberry Pi, and an HDMI monitor, which is just off screen over here. Before we connect anything to the Pi, it needs an operating system. Now, the Raspberry Pi 3 uses a micro SD card. I don't have a micro SD card reader, but I do have one of these adapters, so I'm going to plug the micro SD card into the SD card adapter and attach it to my computer, where we will now go and download our operating system. So head to raspberrypi.org/downloads, and we're going to use Noobs today. Now, Raspbian is the official. Okay, so this is actually the name of the website where you can get the official operating system for Raspberry Pi. The website is raspberrypi.org. You can note down this: raspberry, RASPBERRY dot Raspberry Pi.
raspberry.pi.org/downloads। अगर ये वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो आपको इस तरीके से आएगा। एक्चुअली ये प्रीवियस है, मैं आपको इसका लेटेस्ट भी दिखाऊंगा कि कैसे होता है। इसमें दो ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, नूप्स और रास्बियन। तो ये नूप्स और रास्बियन पे के कौन सा यूज करूं? सो यू कैन यूज नूप्स आल्सो, यू कैन यूज रास्बियन आल्सो। So you generally Raspbian is the most preferred, so Raspbian use the Operating system of the Raspberry Pi. Noobs stands for new out-of-the-box software. It does include Raspbian, but it's just easier to install. So from the official website, you can either download it via torrent or just download the zip. Get that zip downloaded, and we will then put it onto our SD card. Once it's finished downloading, if you're using Windows, simply right-click on the file and select Extract All. When it's finished extracting, the window should automatically open. If not, just go to the noobs directory that's just been created, and it's everything in this directory that we need to copy to the SD card. So if you haven't already, put your SD card into your reader now, and you need to make sure it is already formatted, but you just need to copy these files from here. Okay, तो क्या किया देखो, एक रास्पबेरी जो जिप फाइल डाउनलोड किया। द साइज इज नियरली अबाउट 2 GB, 2 GB का साइज होता है, तो इसके लिए डाउनलोडिंग के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। आफ्टर डाउनलोडिंग जिप फाइल होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो भी फाइल्स वहां पे होगा, एक्सट्रैक्टेड फाइल्स, दैट ऑल द एक्सट्रैक्टेड फाइल यू शुड कॉपी फ्रॉम दिस फोल्डर टू SD कार्ड, बट मेक श्योर दैट योर SD कार्ड शुड बी फॉर्मेटेड, उसमें दूसरा कोई भी फाइल होना चाहिए। तो क्या करना है आपको, फॉर्मेट कैसे करता है पता ही है आपको, ये राइट क्लिक करो, उसको फॉर्मेट कर दो इस तरीके से। और देयर इज अ स्पेशल टूल कॉल्ड SD कार्ड फॉर्मेटर नाम का एक टूल आता है, SD कार्ड फॉर्मेटर। Using that SD card formatter, you can format the SD card, and then after that you can copy these files from this folder to this folder. इस तरीके से आपको कॉपी करना है To the SD card. Once the files are finished copying over, eject your SD card from your computer and you can put it into your Raspberry Pi. So now that you have your micro SD card with your operating system on, ओके तो क्या किया, पूरा कॉपी होने के बाद में SD कार्ड जो कंप्यूटर को कनेक्ट था अभी, वो मैंने निकाल दिया SD कार्ड। अभी मैंने उसको मैं यहाँ पे प्लग करूंगा अपने रास्पबेरी पाई में। रास्पबेरी पाई को पहले सप्लाई नहीं देना है, डू नॉट, लास्ट में, सबसे लास्ट में सप्लाई देना है। हाँ, ऐसे नहीं करना है कि रास्पबेरी पाई को सप्लाई दो और उसके बाद में SD कार्ड इंसर्ट करो, तो आपका रास्पबेरी पाई खराब भी हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है, SD कार्ड प्लग इन करो। उसके बाद में ऑल द जो यहाँ पे कनेक्शन दिए, जैसे कि मुझे कीबोर्ड कनेक्ट करना है, माउस कनेक्ट करना है, HDMI कनेक्ट करनी है, इथरनेट कनेक्ट करना है, सब कनेक्शन पहले कर लो। And the last one is the give the power supply. all you need to do is flip the Raspberry Pi over, and you'll see at the bottom there is a slot for it. Just make sure you have it this way around so that the tabs of the micro SD cards can talk to the tabs on the board itself, and then push that in. Once it's all the way in, you're ready to attach all your peripherals and get started. So when you've got it set up, it should look something like this. I've got my USB keyboard and mouse here just plugged in. If you want to connect directly to the internet via Ethernet, this Ethernet port here, you can just connect that directly to your router. And over here, I have an HDMI cable, which is... Okay, तो देखो मैंने जैसे बोला ना उसी तरीके, पहले USB वाले और HDMI वाले सब कुछ कनेक्शन करना है आपको। लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको पावर अडॉप्टर करना है। दिस इज द वेरी वन ट्रिक जो आपको रास्पबेरी पाई अगर आपको बचाना है आपका, तो ये ट्रिक है। लेकिन अगर कोई नया आता है आपको, वो आप क्या करते हो, नया चीज है, पहले पावर सप्लाई देते हो, उसके बाद में कनेक्शन करते बैठते हो, ऐसे नहीं करना है कभी भी। ये बहुत डेलिकेट चीज होता है। और ये एक बार सप्लाई दे दिए ना, सो डू नॉट टच एनीवेयर, यहाँ पे कहीं पे भी टच नहीं करना है। अगर टच करते हो तो क्या होता है, ड्यू टू योर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ योर हैंड और इफ योर बॉडी, द सम कंपोनेंट्स कैन बी डैमेज। जैसे कि आपने रैम को कनेक्ट कर दिया, इसके रैम को टच कर दिया एंड पावर सप्लाई इज ऑन, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है उसके अंदर का सर्किट चेंज हो जाएगा एंड देन द रैम विल बी नॉट वर्किंग, सो इट मींस दैट योर रास्पबेरी पाई इज नॉट वर्किंग। ओके, सो इट बहुत डेलिकेट चीज होता है। to my monitor. So now that I've got all of those things in place, this power cord, I'm going to plug it in, and it's worth noting that there's no on or off switch on a Raspberry Pi board as standard. Some cases have them, but there isn't. So I plug this in with the power off, but you'll see as soon as I turn the switch on, the Pi starts to boot up immediately. It's just something worth bearing in mind, especially if you're a beginner, because if you turn it on when you have the wrong pins attached together or something, you could maybe fry it. So just a good practice to get into, have it off at the plug, turn it on when you know you're ready. Now that that's booting up, let's look at what we see on the screen. So when you first boot up, you will see this screen.
now this is the whole installation process. Actually ऐसे ही होता है, सेम बिल्कुल ऐसे ही होता है. जैसे ही हम इंस्टॉलेशन स्टार्ट किए तो ऐसे ही प्रोसेस बाहर आता है. वो बोलता है कि आपको क्या इंस्टॉल करना है. तो हमें रास्पबेरी इंस्टॉल करना है, तो रास्पबेरी के ऊपर क्लिक करना है. उसके बाद में जैसे हम विंडोज इंस्टॉलेशन हम करते हैं ना, सेम है. इतना डिफिकल्ट नहीं है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आपको अगर कुछ पता भी नहीं है इंस्टॉलेशन के बारे में, फर्स्ट टाइम कर रहे हो तभी भी आपको इजीली आ जाएगा. क्यों? क्योंकि जो कुछ करना है वो सामने लिखा होता है. So at the bottom of the screen, you can change your language and keyboard language for the installation. And in the main window, you have two options here. You may have more depending on which version of Noobs you have. We're just going to install Raspbian today, as that is the operating system designed for Raspberry Pi. Set it installing, and just be warned, it can take quite a while, so you might want to go off and do something else while it's happening. Once the installation is finished, you'll have a dialog box telling you that it's been successful. Click OK, and this will automatically reboot your Pi into the Raspbian desktop. Now, on first Now look at here how this easy this installation. सिर्फ वहाँ पे 2 क्लिक करना है और 2 क्लिक करने के बाद में ऑटोमेटिकली सब चीज ऑटोमेटिक हो जाएगा और आपका जो रास्पबेरी पाई वो रिबूट हो जाएगा. रिबूट मतलब रिस्टार्ट होगा. जैसे रिस्टार्ट होगा तो ये पूरा मैसेज इस तरीके से मैसेज आता है. और आफ्टर द मैसेज कम्स, ये पूरा होने के बाद में क्या होगा कि एक GUI आ जाएगा. ओके, GUI. Raspberry Pi has their own setup. So this is where you can set your country. I actually live in Germany, but I'm going to leave this at United Kingdom for now. I'll show you why in a minute. But this is where you can set your country, language, and time zone. It's also where you can change the password for your Pi. Now, as standard, each Pi's name is Raspberry and each password is Pi. By entering your own password, it's just a little bit more secure. That might not matter to you right now, but it's worth doing. It's also worth noting that if you want to see what password you're typing in, there is an option to unhide it. I would suggest you choose a better password than I have here. On the next menu is where you get to choose your Wi-Fi network. Once again, most Raspberry Pi boards have Wi-Fi built in. If you have an older Raspberry Pi, you will have needed to plug in a Wi-Fi dongle for it to work. Either way, तो सबसे पहले क्या सेटिंग किया? सबसे पहले सेटिंग किया कि आपका जो पासवर्ड सेटिंग किया. बाय डिफॉल्ट पासवर्ड अगर आप नहीं देते ना, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यूजर इज pi is the यूजर नेम, एंड द बाय डिफॉल्ट पासवर्ड होता है रास्पबेरी, RASPBERRY. सगड़ी सब स्मॉल केस में होता है. तो ये अगर आपने ये स्किप कर दिया उस स्टेप, तो जस्ट रिमेंबर दैट पासवर्ड, पाई एंड रास्पबेरी. उस सेकंड स्टेज है आपका कि वाईफाई नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा. अगर आपके घर पे का वाईफाई नेटवर्क है, अगर नहीं भी है तो आप मोबाइल का वाईफाई वहां पे दो, मोबाइल हॉटस्पॉट ऑन कर दो और वहां पे वही मोबाइल का वाईफाई दो. ओके, व्हाई? बिकॉज इट नीडेड टू अपडेट द रास्पबेरी पाई. अगर रास्पबेरी पाई को कुछ अपडेट मिल रहा है तो वो अपडेट करने के लिए actually the internet is needed. So that is the second step, connect to the Wi-Fi. Find your network and select the correct one and put the password in. As I mentioned before, you can get around this by just connecting directly using Ethernet as well. The final thing we do is check for updates. It does it all automatically. You simply click next and it will check for you. Again, this is something that can take a little while, so just leave it going, and when it's done, we'll come back to it. Okay, so actually when it is connected to internet, then it checks for the update. या अभी अपडेट क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर अपडेट होता है. अगर आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पुराना है थोड़ा सा, मतलब आपने 2-3 महीने पहले वहाँ पे डाउनलोड करके रखा था, वही ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाला, तो अगर 2-3 महीने में कोई नया अपडेशन आया है तो वो अपडेशन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा. जस्ट यू नीड अ हाफ एन आवर फॉर अपडेशन. बहुत टाइम लगता है डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट स्पीड. When this is finished, you'll get a dialog box saying the system is up to date. Click OK, and you can get started using your Raspberry Pi. For a little more configuration, we're going to go to the Applications menu and go under Preferences and select the Raspberry Pi configuration. So we can make a few other. तो ये भी बहुत जरूरी चीज है कि यहाँ पे जैसे ही हम पहले फर्स्ट टाइम करेंगे ना, तो रास्पबेरी पाई कॉन्फ़िगर करना पड़ता है. रास्पबेरी पाई कॉन्फ़िगर मतलब क्या होता है कि वहाँ पे हमें कौन से इंटरफेस ऑन चाहिए, कौन से इंटरफेस नहीं चाहिए, ये सब हमें यहाँ पे करना पड़ता है. जैसे कि कैमरा ऑन चाहिए कि नहीं, I2C ऑन चाहिए कि नहीं, SSH ऑन चाहिए कि नहीं, VLC ऑन चाहिए कि नहीं, क्या क्या है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन changes करना here. पड़ेगा. The main thing that I want to do is just change the name of the Pi, so it isn't just the standard Raspberry Pi. There's also an interfaces menu here. You might not need to know about this if you're just starting out, but it's worth seeing it's here because SSH and VNC on this menu are what allows you to talk to your Pi headlessly.
And here I'm just changing the time zone. As I mentioned, when I first logged into the Pi, I said I was in Germany and it forced me to use the German language. Now I do speak German, but I would like it to be in English, and this is how you can do that. This is also where you can set your keyboards to your language if you haven't already done it. Each time you use config, it will ask you to reboot your Pi. So click yes and it will automatically reboot. So that's it. I hope this has been a good intro. Okay, so this is the Raspberry Pi installation. Hardly it takes 30 minutes to 40 minutes for whole installation, or maximum 1 hour. 1 घंटे में पूरा इंस्टॉलेशन हो जाता है. पूरा एकदम इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर इंस्टॉलेशन सही से नहीं हुआ तो आगे चल के आपको, या कॉन्फ़िगरेशन सही से नहीं हुआ तो आगे चल के आपको जो भी प्रोग्राम करोगे उसमें डिफिकल्टीज आएगा. तो पहले सबसे पहले इंस्टॉलेशन और ये कॉन्फ़िगरेशन ये पूरा करना है. ओके, तो अभी हम जाते हैं डायरेक्टली रास्पबेरी पाई के ऊपर. सो इफ यू अंटिल नाउ एनी डाउट इफ यू हैव, यू कैन आस्क मी. कोई भी अगर आपका कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी. अभी हम क्या करेंगे, अभी देखो रास्पबेरी पाई मेरे पास है, मेरा कंप्यूटर तो है, मैकबुक है मेरे पास. अब ये मैकबुक के ऊपर इसका डिस्प्ले मैं कैसे लूंगा? इसका डिस्प्ले तो मैं ले सकता हूँ मेरे मॉनिटर के ऊपर. तो मॉनिटर का डिस्प्ले में आप यहाँ से कैसे दूंगा? तो ये इसके अंदर है ना, मैं क्या करूंगा, इसको वाईफाई से कनेक्ट करूंगा. ओके, आई एम कनेक्टिंग दिस रास्पबेरी पाई टू वाईफाई नेटवर्क, और वाईफाई नेटवर्क से मैं एक VNC से मैं इसका डिस्प्ले लूंगा. VNC कभी देख किया है आपने? VNC व्यूअर, हैव यू एवर यूज VNC व्यूअर? VNC व्यूअर जनरली मोस्टली कॉमन यूज बाय द स्टूडेंट्स लोग ज्यादा यूज करते हैं. क्या करते हैं कि एक कंप्यूटर है आपके पास, ओके, विच इज रिमोटली लोकेटेड, और उसका डिस्प्ले आपको दूसरे कंप्यूटर पे लेना है, जस्ट लाइक एनीडेस्क और टीम व्यूअर. एनीडेस्क होता है, एनीडेस्क और टीम व्यूअर से भी ले सकते हैं. वी कैन इंस्टॉल एनीडेस्क आल्सो, वी कैन इंस्टॉल द टीम व्यूअर आल्सो. तो इसके जस्ट लाइक दैट एनीडेस्क एंड टीम व्यूअर, I can take the display of this Raspberry Pi on my computer. मेरे कंप्यूटर के मैं उसके ऊपर मैं उसका डिस्प्ले ले सकता हूँ. ओके, क्यों? क्योंकि इसके अंदर तो कोई जूम इंस्टॉल नहीं है, तो इसको जूम से मैं कनेक्ट नहीं कर सकता. ओके, लेकिन डिस्प्ले तो मैं दिखा सकता हूँ. तो चलो करते हैं, इसका कनेक्शन करते हैं, एंड विल स्टार्ट विद द वन ऑफ द प्रोग्राम. ओके, तो देखो ये दिखाई दे रहा है. Is it visible? Yes, is it visible? Just Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay, okay. तो ये देखो मेरे पास different types of the connectors है. देखो, so this is the actually USB cables है. ये किसके है? कीबोर्ड माउस के. मेरे पास कीबोर्ड माउस भी है, तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा. तो सबसे पहले मैं USB केबल में कनेक्ट करता हूँ. So I am connecting to USB cable. ओके, ऐसे नहीं कि कोई भी चारों में से कोई भी आपको चलेगा, ऐसे नहीं कि वही पे कनेक्ट करना है. देन द सेकंड वन इज द ये HDMI केबल है मेरे पास, वो HDMI केबल में कनेक्ट करूंगा. सो दिस माय HDMI केबल. ओके, HDMI केबल भी मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे. ओके, और क्या है, SD कार्ड में देखूंगा कि SD कार्ड कनेक्ट है कि नहीं. यस, SD कार्ड इज कनेक्टेड. ओके, और उसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसको पावर सप्लाई देना है. सो बिफोर वीडियो में उन्होंने बोला कि बिफोर कनेक्टिंग दैट पावर सप्लाई टू योर बोर्ड, मेक श्योर दैट योर पावर अडेप्टर इज ऑफ. तो मैं चेक कर लेता हूँ कि पावर अडेप्टर ऑफ है कि नहीं. यस, पावर अडेप्टर इज ऑफ. तो मैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे सप्लाई दे दिया. अभी पावर अडेप्टर ऑन होता तो डायरेक्टली यहाँ पे LED ग्लो होते. पावर अडेप्टर ऑन नहीं है, तो इसीलिए अभी LED ग्लो नहीं है. तो मैं क्या करूंगा, मैं पावर अडेप्टर ऑन कर रहा हूँ. मैंने पावर अडेप्टर ऑन किया. जैसे मैंने पावर अडेप्टर ऑन किया, यू कैन सी हियर, you can see it is get connected. ओके, जैसे ही कनेक्ट हुआ, अभी मेरा जो so I can show you what process is actually carrying out in the monitor. ये देखो मॉनिटर के ऊपर स्टार्ट हुआ है, एंड माय रास्पबेरी पाई गेट स्टार्टेड. मेरा रास्पबेरी पाई स्टार्ट हो गया मॉनिटर के ऊपर. ओके,
मॉनिटर में दिख रहा है, जैसे मेरा कंप्यूटर के ऊपर जैसे डिस्प्ले दिखते हैं, आइकॉन्स दिखते हैं, द सेम आइकॉन्स इज आई एम गेटिंग देयर। ओके, तो ये इसके ऊपर मैं डायरेक्टली वर्क कर सकता हूँ बिकॉज द कीबोर्ड इज आल्सो कनेक्टेड एंड माउस इज देयर एंड माय मॉनिटर इज आल्सो देयर, सो आई कैन डायरेक्टली यूज दिस लाइक दिस। ओके, देखो जैसे मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, मैं आपको ओपन कर सकता हूँ, जस्ट लाइक आई कैन यूज लाइक माय कंप्यूटर। मेरे कंप्यूटर के हिसाब से मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरा वाईफाई ऑन है कि नहीं। ओके, आई कैन see here my Wi-Fi is on, मेरा Wi-Fi है और मेरा Wi-Fi को connected है, देखो उत्तर दे BSNL इसको मेरे connected है, so it means that now I can use this computer, I can connect this Raspberry Pi over the VNC में, वो VNC से क्यों, क्योंकि देखो VNC भी यहाँ पे कनेक्टेड है, VNC सर्वर इज ऑन और उसका IP एड्रेस भी दिया देखो 192.168.1.17, so using this IP address I can connect over the my using my MacBook के ऊपर मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ। So how many of you have used the VNC before? कितने लोगों ने VNC यूज किया है? Just type me in chat box. कितने लोगों ने VNC यूज किया है? नितिन नाइक has used the VNC. Okay, तो VNC देखो, VNC स्टार्ट करेंगे। ओके, तो VNC स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो मैं जाऊंगा और VNC टाइप करूंगा। ये VNC व्यूअर मेरा मिल गया। जैसे VNC व्यूअर मिला तो वो पूछ रहा है कि VNC सर्वर का IP एड्रेस बताओ। अभी मैंने देखा, देखो 192.168.1.17 इज द IP एड्रेस। ओके, तो ये यहाँ पे मैंने जैसे ही मैंने किया, so now it is asking, actually it is asking for username or password. So can you tell me what is the username and password? मैंने अभी बोला था, देखो what is the default, मैंने default ही रखा है। What is the default username and password? Username is Pi and password is Raspberry. Yes, yes, username is Pi, तो मैंने username Pi डाल दिया और Raspberry में RASPBERRY। ओके, आप इस तरीके से कर सकते हो। ओके, RASPBERRY और मैं ओके करूं। जैसे मैं ओके करूंगा तो वहां पे जो डिस्प्ले और आ रहा था ना, सेम डिस्प्ले आई एम गेटिंग हियर। सो आर यू एबल टू सी द रास्पबेरी पाई डिस्प्ले? रास्पबेरी का डिस्प्ले दिखाई दे रहा है अभी? मतलब देखो ये वहां पे मैं यही से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। आई कैन कंट्रोल माय रास्पबेरी पाई फ्रॉम माय मैकबुक। मेरे मैकबुक से मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। यस, तो देखो पहले उसका फीचर्स देख लेते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए सबसे पहले तो आपको प्रेफरेंस में जाना पड़ेगा और रास्पबेरी पाई कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। जैसे आप रास्पबेरी पाई कॉन्फ़िगरेशन में जाते हो तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सेटिंग्स आर गिवन। जैसे कि पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ पे चेंज पासवर्ड कर दो। होस्ट नेम मतलब ये रास्पबेरी पाई का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रास्पबेरी पाई, रास्पबेरी पाई इज द नेम ऑफ द रास्पबेरी पाई। ओके, बूट कहाँ से करना है? बूट मतलब क्या है कि जब ये रिबूट होगा ना तो आपको ये GUI वाला वर्जन चाहिए या आपको कमांड लाइन इंटरफेस चाहिए? कमांड लाइन इंटरफेस इज जस्ट लाइक योर टर्मिनल और द कमांड प्रॉम्प्ट जो विंडोज में होता है ना, कमांड प्रॉम्प्ट ब्लैक विंडो वाला, C ड्राइव D ड्राइव वाला, वो CLI इंटरफेस चाहिए या डेस्कटॉप इंटरफेस चाहिए? ये बूट के ऊपर ऑटो लॉगिन करना है। मतलब ये देखो मैंने जब स्टार्ट किया ना तो उसने पासवर्ड, तो इसके लिए मैंने ऑटो लॉगिन किया है। ओके, तो और ये डिफरेंट, ये रिजोल्यूशन भी सेट कर सकते हो। ओके, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं इतना। लोकलाइजेशन में आप कर सकते हो, जैसे लोकल टाइम जोन कौन सा है, जैसे कि यहाँ पे टाइम जोन एशिया और कोलकाता यहाँ का दिया है, कीबोर्ड का सेट कर सकते हो। इंटरफेस इज द मेन थिंग। ओके, इंटरफेस मतलब क्या है कि अगर आपको इसके अंदर जो कैमरा मॉड्यूल होता है अगर यूज करना है तो ये कैमरा मॉड्यूल इनेबल करना होगा। अगर SSH लॉगिन करना है, जैसे मैंने VNC लॉगिन किया अभी, उसी तरीके से आप SSH लॉगिन भी कर सकते हो। SSH लॉगिन को बोलते हैं टर्मिनल लॉगिन। मतलब आप कमांड प्रॉम्प्ट से, अगर आपको कोई भी कंप्यूटर से कमांड प्रॉम्प्ट से ऊपर से अगर कनेक्ट करना है, सो द SSH शुड बी इनेबल। ओके, VNC भी मुझे इनेबल चाहिए, क्यों? क्योंकि ये मैंने अभी VNC से ही कनेक्ट किया। SPI इनेबल चाहिए, I2C इनेबल चाहिए क्या, सीरियल पोर्ट इनेबल चाहिए क्या, मतलब TX, RX, SCL, SDA, MISO, SOM, MOSI ये यूज करना है कि नहीं, इसके लिए इनेबल डिसेबल करना होगा। वन वायर इंटरफेस चाहिए क्या, रिमोट GPIO चाहिए क्या, मैंने सभी डिसेबल रखा है और ये 3 ही ऑन किए। ओके, जनरली कैमरा अगर नहीं है तो कैमरा डिसेबल भी लग सकते हैं। जैसे आप इनेबल या डिसेबल उसको चेंज करोगे ना, सो इट इज आस्किंग फॉर रिस्टार्ट योर कंप्यूटर। तो रिस्टार्ट योर नॉट कंप्यूटर, रिस्टार्ट योर
रास्पबेरी पाई इंस्टॉल करना रिस्टार्ट करना पड़ेगा आपको। तो मैं यहाँ पे कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं चेंज किया तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ब्लूटूथ है, तो ब्लूटूथ को भी ऑफ ऑन ऑफ कर सकते हो, या ब्लूटूथ नए डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक आपका WLAN 0 मतलब वायरलेस लैन दिया है, तो लैन को भी कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर सकते हो। आपका जो कनेक्शन है, ये ऑडियो को भी कम ज्यादा कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट टाइप्स। ये दिया है आपका सीपीयू कितना अभी यूज हो रहा है, कितने परसेंट यूज हो रहा है वो दिखाता है, टाइम कितना हुआ है वो दिखाता है, कैलेंडर भी दिखाता है। सो लॉट्स ऑफ द एक्चुअली द इंटरफेस आर गिवन। और क्या दिया इसमें, अगर मैं उसके मेनू के अंदर जाऊंगा, आर यू एबल टू सी स्क्रीन प्रॉपरली, या छोटा हो रहा है थोड़ा सा? Yes, sir. छोटा होता है क्या थोड़ा? नाही प्रॉपर दिसतंय, नो प्रॉब्लेम. Is it आता थोड़ा visible? मोटा केला मी. ओके, तो देखो प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप जाओगे ना, तो यू कैन सी दैट हाउ मेनी प्रोग्रामिंग आईडीज आर अवेलेबल। जैसे भी ब्लूजे भी अवेलेबल है, जैसे जावा प्रोग्रामिंग करना है, ये जावा आईडी, ग्रीनफूट जावा आईडी इज अवेलेबल, नोड रेड इज आल्सो अवेलेबल, पाइथन 2 का भी आइडल है, पाइथन 3 का भी आइडल है, बाय डिफॉल्ट आता है। स्क्रैच भी है, स्क्रैच 2 भी है, हाइसेंस हार्ट इम्यूलेटर भी है। एक्चुअली हार्ट इम्यूलेटर इज डिफरेंट वन, हार्डवेयर चाहिए इसके लिए। थॉनी इम्यूलेटर भी दिया है, और पाइथन का सिंपल मोड दिया है। ये सब कुछ मतलब प्रोग्रामिंग जावा पाइथन इट ऑल सपोर्टेड। ओके, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखो दिए है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट चलाना है आपको, तो आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट से नहीं मिलते। यहाँ पे एक ओपन सोर्स दिया है, लिब्रे ऑफिस। तो जस्ट लाइक सपोज मुझे क्या करना है कि मुझे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना है इसमें, तो मैं ओपन करूंगा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो इम्प्रेस में करूंगा तो आई कैन डू द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन दिस रास्पबेरी पाई आल्सो। देखो ये रास्पबेरी पाई, ये आपका, मैं यहाँ पे अपने स्लाइड प्रेजेंट में क्लिप बना सकता हूँ और प्रेजेंट भी कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं उसके ऊपर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब कुछ मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट सब कुछ दिया। देखो मैथ मतलब नहीं, ड्रॉ मतलब क्या होता है, एक नहीं ड्रॉ नहीं, बेस, बेस मतलब है आपका डेटाबेस, कैल्क मतलब आपका एक्सेल है, ड्रॉ मतलब है आपका ड्राइंग का, इम्प्रेस मतलब प्रेजेंटेशन का है, और राइटर मतलब आपका ये होता है अपना वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ना, वर्ड जिस तरीके से दिखाई देता है, द सेम यू कैन गेट इट हियर। सो यू कैन क्रिएट योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट आल्सो ऑन दिस डिवाइस ओनली। इंटरनेट भी दिया है, देखो कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे क्रोमियम ब्राउजर दिए, देखो जैसे मैं क्रोमियम ब्राउजर करूंगा, सो आई कैन एक्सेस द इंटरनेट आल्सो। इसको मुझे एक्सटर्नली कहीं कुछ कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ क्या है कि आपको इंटरनेट कनेक्ट चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ पे गूगल चाहिए, जो भी वेबसाइट के ऊपर जाना है तो डायरेक्टली आप जाओ और यू कैन गेट इट। मतलब सर्च करने के लिए आपको कंप्यूटर भी नहीं चाहिए, यू कैन डायरेक्टली सर्च ऑन दिस रास्पबेरी पाई आल्सो। आपको अगर कोई सपोज एक प्रोग्राम आपको सर्च करना है, जैसे रास्पबेरी पाई का एक प्रोग्राम है, सपोज ब्लिंक का प्रोग्राम, ब्लिंक एलईडी प्रोग्राम। ओके, अगर आपने ऐसे किया, आपको प्रोग्राम मिल गया, सो जस्ट कॉपी पेस्ट, आपको उससे कॉपी पेस्ट करना है। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करो, उसको पेस्ट कर दो, तो कॉपी पेस्ट भी इसमें बहुत सारा अच्छा काम चलता है। ओके, सो इट इज हैविंग द क्रोमियम ब्राउजर आल्सो। गेम्स भी दिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स इज आल्सो गिवन। some accessories are also there, like calculator, file manager, PDF viewer, image viewer, SD card copier, terminal। ये इसमें से हमें टर्मिनल काम का है थोड़ा सा। टर्मिनल किस लिए काम होता है कि अगर कोई कमांड एग्जीक्यूट करनी है तो इसलिए टर्मिनल काम होता है। ओके, एजुकेशन में अगर आप जाओगे तो एजुकेशन में भी यहाँ पे स्मार्ट सिमुलेशन ऐसे दिया है। ग्राफिक्स में जाओगे तो ग्राफिक्स में भी दिया है, साउंड वीडियो का भी सेटिंग इसके लिए VLC मीडिया प्लेयर दिया है, तो यू कैन प्ले द डिफरेंट वीडियोज ऑल्सो। तो देखो बहुत सारा चीज दिया है, जस्ट लाइक योर कंप्यूटर, इट इज वेरी जस्ट लाइक योर कंप्यूटर। तो हम क्या करेंगे अभी, what we can do, we are doing the one project। हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जस्ट लाइक योर ब्लिंकिंग एलईडी प्रोग्राम। सिंपल एक ब्लिंक एलईडी का प्रोग्राम बनाएंगे, जैसे हमने आर्डिनो को बनाया था। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम यहाँ पे बनाएंगे। मैं आपको डिफरेंट स्टेप्स आपको बताऊंगा, व्हाट आर द डिफरेंट पाइथन इंस्ट्रक्शन दैट वी हैव टू राइट, ये भी मैं बताऊंगा आपको, और इसको रन कैसे करते हैं ना, ये भी हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उसका हेडर पिन कौन सा है।
तो इसके लिए देखो मैंने डेस्कटॉप के ऊपर मैंने इसका हेडर पिन रखा है। देखो तो आप देख सकते हो कि आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ऑन विच पिन यू हैव टू कनेक्ट द एलईडी ऑफ एनोड ऑफ एलईडी का एनोड है ना, कहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। सपोज आई हैव डिसाइडेड दैट पिन नंबर 12 है ना, पिन नंबर 12 या GPIO 18। नाउ दिस पिन यू कैन एक्सेस इन 2 वेज। ये जो पिन दिया है ना देखो GPIO 18, दिस GPIO 18 यू कैन एक्सेस इन 2 वेज। ये एक होता है आपका BCM मोड और एक होता है बोर्ड मोड। BCM मोड मतलब क्या है कि GPIO 18 नंबर, मतलब ये माइक्रो कंट्रोलर का पिन नंबर है। मतलब दिस पिन आई कैन एक्सेस बाय यूजिंग 18 आल्सो एंड 12 आल्सो। लेकिन आपको कौन सा मोड यूज कर रहे हो उसके ऊपर हिसाब से, जैसे कि इफ यू आर यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर के हिसाब से अगर आपको चलना है तो यू हैव टू कॉन्फ़िगर एज 18। लेकिन बोर्ड के हिसाब से, मतलब बोर्ड मतलब क्या है, ये पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 नंबर का पिन मतलब बोर्ड के हिसाब से। ये बोर्ड कैसे सेट करते हैं, मोड कैसे सेट करते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो याद रखना है अभी माइक्रो कंट्रोलर का वर्जन में यूज करूंगा उसका पिन का तो 18 नंबर है, बोर्ड का यूज करूंगा तो 12 नंबर है। ओके, तो ये और 5 वोल्ट कहाँ पे दिया है, पिन नंबर 2 और 4 में, और ग्राउंड कहाँ पे दिया है, पिन नंबर 6 में। तो देखो हमें ग्राउंड और ये पिन नंबर 18 लगेगा, तो ये राइट हैंड साइड में 3 नंबर का और 6 नंबर का पिन ये हमें लगेगा। तो ये सिर्फ आपको याद रखना है, और याद रखने के बाद में we will go to the camera directly and we will first do the interfacing of that particular LED interfacing हम करेंगे। ओके, तो ये देखो ये मेरा रास्पबेरी पाई है। दिस इज माय ब्रेडबोर्ड। ये ब्रेडबोर्ड मैंने यहाँ पे कनेक्शन किया। देखो दिस इज अ कैथोड इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर, और रजिस्टर का एक दूसरा टर्मिनल जाएगा ग्राउंड को। तो देखो दिस टाइप ऑफ द वायर्स आई नीड, दिस कॉल्ड एज अ मेल फीमेल कनेक्टर। ये देखो इस तरीके से वायर्स होती है मेल फीमेल कनेक्टर। दिस साइड इज कॉल्ड एज अ मेल कनेक्टर, दिस साइड इज कॉल्ड एज अ फीमेल कनेक्टर। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे ये जो ग्राउंड है, मतलब जो ग्रीन कलर का है ना, मुझे ग्राउंड को कनेक्ट करना है। तो ग्राउंड कौन सा था, ग्राउंड तो मुझे पता होना चाहिए ग्राउंड कौन सा है। तो 3 नंबर वाला ग्राउंड था, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, 3 नंबर वाला ग्राउंड था। और उसके बाद में जो राइट हैंड साइड में 6 नंबर का था वो GPIO 18 था, तो मैंने वो GPIO 18 को मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। अभी हम उसका प्रोग्रामिंग करेंगे। सो आपका कनेक्शन तो हो गया। अभी कनेक्शन होने के बाद में हम क्या करेंगे, प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे। तो प्रोग्रामिंग कहाँ पे करेंगे, आपके रास्पबेरी पाई में ही प्रोग्रामिंग करोगे, रास्पबेरी पाई में ही प्रोग्रामिंग करोगे। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए आप जा सकते हो यहाँ पे, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड देन एक्सेसरीज, क्लिक ऑन द एक्सेसरीज एंड क्लिक ऑन द टर्मिनल। तो ये जो टर्मिनल है ना, टर्मिनल के ऊपर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। ओके, इज इट विजिबल? येस सर. विजिबल है? थोड़ा फॉन्ट मोठा Yes, sir. करू का? का हा नाही? थोडं मोठं करून द्या. आता मोबाईल वरती काही युजर बघत असणार ना, तर त्यांना अजून लास्ट स्क्रीन मध्ये दिसेल. Zoom in. Zoom in. ओके. Students, screen is visible to you? Screen visible है? Okay, okay. त्याला की स्पीड वाढला आज. Drop your message in chat box. Okay. तो हम Okay. करेंगे यहाँ पे. So I have my folder Ganesh, and in that folder actually I have the program. I am explaining that program to you. What is the meaning of that program? So if you know how the actually nano editor works, then it is quite useful to you. लेकिन नहीं है तो हम इंटर्नशिप में ये पूरा सिखाते हैं. What are the different Linux command, इसको फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, ये सब कुछ सिखाते हैं. तो very first line, if you can see, the very first line is the import. Very first line is the import rpy.gpio as gpio. Okay, so if you know the actually Python language, तो Python language में अगर कोई भी अगर मॉड्यूल
हमें या लाइब्रेरी हमें इंक्लूड करना है तो import is the statement. Just like in a C language हम करते हैं hash include, so it is a hash include of Python. तो import rpy.gpio, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे gpio का प्रोग्रामिंग करना है, तो gpio का लाइब्रेरी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। उसके बाद में मुझे क्या करना है, ब्लिंकिंग एलईडी मुझे आउटपुट चाहिए, ब्लिंकिंग एलईडी। तो ब्लिंकिंग एलईडी के लिए क्या चाहिए, डिले फंक्शन चाहिए। सो डिले फंक्शन इज अवेलेबल इन टाइम, डिले फंक्शन इज अवेलेबल इन द टाइम लाइब्रेरी। मैंने इंपोर्ट टाइम भी किया, मैंने क्या किया, इंपोर्ट यहाँ पे टाइम भी किया। इंपोर्ट टाइम किया तो 2 मॉड्यूल मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। इट इज वेरी जस्ट लाइक योर इट इज जस्ट लाइक दे योर आर्डिनो भी हम क्या करते हैं, आर्डिनो में जो भी लाइब्रेरी हमें इंक्लूड करना है तो सबसे पहले हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कर लिया। अभी क्या करना है, मैंने अभी बोला, देखो जैसे ही मैंने आपको पिन दिखाए थे, तो मैंने बोला कि द पिन नंबर 18 कैन बी यूज इन 2 वेज। एक होता है आपका माइक्रो कंट्रोलर का पिन नंबर और दूसरा होता है बोर्ड का पिन नंबर। बोर्ड का पिन नंबर रहता 12 नंबर, बोर्ड का पिन नंबर कहता है 12 नंबर, और माइक्रो कंट्रोलर का क्या था 18 नंबर। तो अगर मुझे माइक्रो कंट्रोलर के हिसाब से चलना है, सो यू शुड सेट द मोड एज अ बीसीएम मोड। माइक्रो कंट्रोलर के पिन नंबर के हिसाब से अगर मुझे चलना है तो क्या करना होगा, GPIO डॉट सेट मोड, और सेट मोड कौन सा करना है, GPIO डॉट BCM। BCM रिप्रेजेंट आई एम यूजिंग द GPIO 18, मैं यूज कर रहा हूँ GPIO 18। मैं बोर्ड का 12 नंबर नहीं यूज कर रहा, मतलब प्रोग्रामिंग में अगर मैं 18 नंबर यूज करूंगा तो GPIO 18 होगा। लेकिन अगर बोर्ड यूज करना है तो आपको स्पेसिफिकली वहां पे देना पड़ेगा, इस BOARD, आपको बोर्ड देना पड़ेगा। बट इफ यू आर यूजिंग द बोर्ड मोड देन यू हैव टू रिप्लेस दैट 18 बाय 12। सो आर यू गेटिंग दिस डिफरेंस? आपको एक डिफरेंस पता चला कि अगर GPIO.BCM यूज करता हूं तो सेम पिन के लिए मुझे 18 यूज करना पड़ेगा। वही अगर मैं GPIO.बोर्ड यूज करता हूं तो सेम के लिए मुझे 12 यूज करना पड़ेगा। यस, आर यू गेटिंग दिस? अभी और उसके बाद में अभी देखो, इट इज ये क्या है, व्हाट इज दिस, द हैश रिप्रेजेंट इज अ कमेंट। ओके, सो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस कमेंट लाइन, बट द नेक्स्ट लाइन इज द, अभी देखो हमने क्या किया था लास्ट टाइम आर्डिनो में, व्हाट वी हैव डन, जो भी पिन नंबर 2 को अगर एलईडी कनेक्ट है तो पिन नंबर 2 शुड बी कॉन्फ़िगर एज आउटपुट पिन। तो यहाँ पे भी सेम ही है, यहाँ पे क्या करना होगा, मुझे सेटअप करना होगा, GPIO.setup सेटअप करना होगा कि मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं GPIO 18 यूज करने वाला हूँ, जस्ट सेटअप दैट पिन एज अ GPIO.out, मतलब ये आउटपुट पिन मुझे कॉन्फ़िगर करना है। अभी एलईडी इज आउटपुट डिवाइस तो ये आउट आएगा, वही अगर स्विच लगाता मैं तो वहां पे आएगा GPIO.in, इस तरीके से आता। आर यू गेटिंग दिस? समझ में आया? ओके, द नेक्स्ट वन इज द, अभी ब्लिंकिंग का प्रोग्राम लिख लो। ब्लिंकिंग का प्रोग्राम कैसे लिखोगे, सिंपल है, यहाँ पे प्रिंट कर दो पहले एलईडी ऑन, उसके बाद में एलईडी ऑन करना है। एलईडी ऑन कैसे होगा, तो एलईडी ऑन करने के लिए आर्डिनो में था फंक्शन डिजिटल राइट फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन है GPIO। इस लाइब्रेरी में एक आउटपुट नाम का एक फंक्शन है, उसको 2 आर्गुमेंट देने हैं। 2 आर्गुमेंट क्या देने हैं, जो 18 नंबर का पिन है उसको क्या करना है, GPIO.high करना है, मतलब उसको हाई बना दो, मतलब पिन नंबर 18 के ऊपर 1 चला जाएगा। जैसे 1 चला जाएगा एलईडी ऑन हो जाएगा। ओके, उसके बाद में एलईडी ऑन होने के बाद में मुझे 1 सेकंड के लिए वेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, टाइम डॉट स्लीप, इस तरीके से आएगा, टाइम डॉट स्लीप, और 1 दे दिया। 1 रिप्रेजेंट स्लीप फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए वेट कर दिया। ओके, उसके बाद में एलईडी ऑफ प्रिंट होगा। उसके बाद में मैंने क्या किया, GPIO.output 18 GPIO.low, तो पिन नंबर 18 क्या हो गया, पिन नंबर 0 हो गया। पिन नंबर 18 इज 0 हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, एलईडी इज ऑफ, एलईडी ऑफ हो गया। जैसे ही ऑफ हुआ तो क्या हुआ, उसके बाद में आपने अगेन यू आर वेटिंग फॉर 1 सेकंड, 1 सेकंड के लिए वेट किया। तो जैसे 1 सेकंड के लिए वेट हुआ, और आपको यही कोड कितने बार एग्जीक्यूट करना है, यू हैव टू एग्जीक्यूट दिस कोड इन इनफाइनाइट टाइम। तो इनफाइनाइट एग्जीक्यूट करने के लिए यही कोड मैंने किसमें लिख दिया, while 1 में। इसको किसमें लिख दिया, while 1 में। तो while 1 में मैंने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है। इफ यू नो द सिंटैक्स ऑफ पाइथन, तो पाइथन में इंडेंटेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये while 1 का जो भी कोड होगा वो विद द टैब 2 टैब से आएगा। ट्राई कैच में जो भी होगा वो 1 टैब से आएगा। गेटिंग दिस? जब आप पाइथन सीखोगे तो आपको समझ में आएगा। हाउ मेनी ऑफ यू नो द पाइथन? जस्ट टाइप मी इन चैट बॉक्स। कितने लोगों को पाइथन आता है? यस, नितिन नाइक नो द पाइथन। और कोई?
और किसी को आता है? नहीं आता? ओके, तो नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, ओके, तो देखो ये while वन में लाया है, इसका मतलब क्या है कि आपका ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ एलईडी कंटिन्यूसली होता रहेगा। ओके, और ये मैंने क्या किया, अभी ये कंटिन्यूसली होगा, लेकिन मुझे इसको स्टॉप भी तो करना है कि नहीं? मुझे इसको पूरा जो कोड रन होगा ये इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूट होगा, ये मुझे स्टॉप करना है। तो एग्जीक्यूट मुझे करने के लिए हाउ आई कैन टर्मिनेट द प्रोग्राम विच इज इनफाइनाइटली रनिंग, तो उसके लिए कंट्रोल सी दबाना पड़ता है। कंट्रोल सी इज कॉल्ड एज अ कीबोर्ड इंटरप्ट, कंट्रोल सी इज कॉल्ड एज अ कीबोर्ड इंटरप्ट। तो सडनली टर्मिनेट होगा, तो इसके लिए मुझे इसको ट्राई कैच में मुझे लिखना पड़ेगा, ट्राई कैच। ट्राई कैच इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। मुझे एक्सेप्शन हैंडल किया मैंने कि इफ द यूजर इज प्रेसिंग द कीबोर्ड इंटरप्ट, अगर यूजर कीबोर्ड इंटरप्ट प्रेस करता है तो क्या करना होगा, जो जीपीआईओ मैंने यूज किया ना उसको क्लीन अप कर दो। क्लीन अप कर लो मतलब इसका है कि उसको फ्री कर दो, जस्ट फ्री दैट पर्टिकुलर जीपीआईओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का मामला है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि जब भी हम कोई रिसोर्स यूज करते हैं ना, उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न करना पड़ता है। तो ये क्लीनअप मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को जीपीआईओ मैंने रिटर्न कर दिया। ओके, तो ये प्रोग्राम मैंने लिख लिया। अब इसी प्रोग्राम को मुझे क्या करना है, इसी प्रोग्राम को मुझे रन करना है। तो रन कैसे करूंगा, तो कंट्रोल सी में यूज, कंट्रोल एक्स में यूज करूंगा। कंट्रोल एक्स, वो पूछेगा कि सेव करना है क्या, मैंने यस टाइप किया तो ये सेव हो गया, फाइल टू राइट blink.py। ओके, हो गया। अभी इसको रन करना है। सो आर यू एबल टू सी माय, ओके, दिख रहा है अभी आपको? आपको क्या दिख रहा होगा? आपको एलईडी भी दिख रहा होगा और आपको स्क्रीन भी दिख रही होगी। स्क्रीन दिसते का सर, तुपे सर? Yes, sir. Screen is visible. स्क्रीन आणि कॅमेरा पण दिसतंय दिसतोय, दोन्ही दिसताय? बोर्ड आणि आपला पीसी बोर्ड दिसतोय एलईडीचा. एलईडी इंटरफेसिंग दिसते. आणि टर्मिनल दिसतंय का? टर्मिनल, टर्मिनल पण दिसतंय? टर्मिनल ब्रेडबोर्ड आणि दिसतोय, ब्रेडबोर्ड आणि बरं, दिसतोय. रास्पबेरी पाय बोर्ड आणि जो ब्रेडबोर्ड आहे तो दोघं दिसतात. आता स्क्रीन दिसतोय. ओके, तो अगोदर आपण काय करूया, फर्स्टली व्हाट वी विल डू, वी विल रन द प्रोग्राम। ये जो blink.py मैंने किया ना उसको रन करेंगे। तो रन करने के लिए द कमांड इज python 3। python 3 यूज करने वाले में, python 2 से भी यूज कर सकते हैं। python 2 से रन करना है तो सिर्फ python 3 से रन करना है तो python 3 एंड देन द नेम ऑफ माय प्रोग्राम, इट इज blink.py। अगर मैं इस तरीके से करूँ python 3 blink.py, सो इट स्टार्ट रनिंग। मैं एंटर किया, जैसे एंटर किया तो क्या हुआ, ये देखो एलईडी ऑन, एलईडी ऑफ, एलईडी ऑन, एलईडी ऑफ होगा। और अगर आप वही अगर जाओगे हाँ यूएसबी कैमरा में, तो यू कैन सी हियर इट स्टार्ट ब्लिंकिंग, इट स्टार्ट ब्लिंकिंग। आर यू गेटिंग दिस? और यही अगर मैं टर्मिनल में जाऊं तो कंटिन्यूअसली इट इज प्रिंटिंग द एलईडी ऑन एंड एलईडी ऑफ, एलईडी ऑन और एलईडी ऑफ, क्योंकि प्रोग्राम मैंने वैसे ही लिखा है। अभी इसको स्टॉप करना है। ये तो while वन में, इट इज इन अ while वन मतलब इनफाइनाइट लूप में। इसको अभी क्या करना है, मुझे स्टॉप करना है। सो हाउ टू स्टॉप, स्टॉप कैसे करेंगे, तो स्टॉप करने के लिए कंट्रोल सी, जैसे ही मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगा तो ये स्टॉप होना चाहिए। देखो स्टॉप, जो लास्ट स्टेप है कंट्रोल सी। ओके, तो ये स्टॉप हो गया, ये स्टॉप हो गया। देखो अब इट गेट स्टॉप, इट गेट स्टॉप। ओके, सो इट गेट स्टॉप हियर। आर यू गेटिंग दिस? मैं थोड़ा सा पूरा टर्मिनल में क्लियर कर रहा हूं। ये इंटरनेट मधून आहे म्हणून थोडा स्लो चालतो। Okay, so it means that actually I can run my any program। क्या करना होगा, प्रोग्रामिंग का टेक्निक क्या है, सिंपल, गो इन द टर्मिनल
जस्ट टाइप योर प्रोग्राम यूजिंग द नैनो एडिटर। कोई भी प्रोग्राम है उसको अगर आपको करना है तो नैनो एडिटर से टाइप करो, एंड देन आफ्टर दैट यू कॅन रन दॅट प्रोग्राम। हँग झालाय तो, मी परत त्याला कनेक्ट करतो VNC व्ह्यूअरला 192.168.1.70. ASPBERRY. Sometime it get hangs. ओके, तो परत आला बघा, परत कनेक्ट झाला, मी तुम्हाला परत स्क्रीन शेअर करतो आहे। ओके, सो दिस इज द न्यू थिंग। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले नैनो यूज करो, यूज द नैनो एंड एनीथिंग एनी कमांड और जस्ट क्रिएट वन फाइल यूजिंग द नैनो। जैसे कि मुझे एक करना है कि माय प्रोग्राम .py, इस तरीके से एंटर करो। आपको जो प्रोग्राम होगा वो टाइप करो, एंड आफ्टर टाइपिंग दैट प्रोग्राम यू कैन रन दैट प्रोग्राम। ये रन कैसे करोगे, जैसे ही मुझे माई प्रोग्राम डॉट पाई, ये मैंने टाइप कर लिया प्रोग्राम, उसको सेव कर लिया, उसके बाद उसको रन करना है। तो रन करने के लिए पाइथन 3 और मैं करूंगा माई प्रोग्राम डॉट py, पाइथन फाइल, py फाइल, एंड व्हेन आई प्रेस एंटर एक्चुअली दैट प्रोग्राम get start running. Okay, so these are some programs actually that I have already done on this Raspberry Pi. जिस तरीके से DST11 है, IoT मोशन है, अल्ट्रासोनिक सेंसर है, सर्वो मोटर है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर है, डेटाबेस के कोई प्रोग्राम है, फेडिंग LED है, दिस मच ऑफ द, मतलब इसमें क्या है कि ऐसे नहीं कि एक ही प्रोग्राम आप रन करना है, आप कोई बहुत सारे प्रोग्राम इसमें स्टोर करके रख सकते हो। जो भी प्रोग्राम रन करना है ना, वो सिर्फ आप ओपन कर दो। जैसे कि मैं ये करूंगा फेड LED डॉट पाई, इस तरीके से ये रन करूंगा मैं इस तरीके से। तो सपोज मैं वही करूंगा, फेडिंग LED का इफेक्ट करना है, तो मेरा GPIO किसको कनेक्ट है, 18 को कनेक्ट है, तो मैं यहाँ पे 18 कर दिया और मैं करूंगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो कंट्रोल X Y एंड एंटर, एंड इफ आई वांट टू रन इट अगेन तो सिंपल है फेड LED डॉट पाई मैं करूंगा। सो माय LED ब्राइटनेस गेट स्टार्ट इंक्रीज और डिक्रीज, बघू शकता तुम्ही थोडस बघा, LED चे ब्राइटनेस कमी जास्त होते, सो इट इज अ PWM, कमी जास्त कमी जास्त कमी जास्त। सो आर यू एबल टू सी, बट दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल इन आर्डिनो। देखो आर्डिनो में क्या था, प्रीवियस प्रोग्राम में किसी ने एक क्वेश्चन पूछा, देखो सर ऑलरेडी में आर्डिनो के अंदर कुछ प्रोग्राम है, उसको रीड करना है, तो रीड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, बिकॉज जब आप ओवरराइट करते हो ना, जब नया प्रोग्राम डालते हो तो ओवरराइट हो जाता है। इसमें वैसे नहीं है, यू कैन स्टोर द लॉट्स ऑफ प्रोग्राम, इसके अंदर जितना मेमोरी है ना उतना फुल कर दो पूरा, कितने भी प्रोग्राम कर सकते हो, और जो भी प्रोग्राम आपको चाहिए वो प्रोग्राम से आप रन कर दो। इट इज अ वेरी वेरी गुड embedded platform for doing a program, and research level program भी आप इसमें कर सकते हो। यस, अभी करना है, स्टॉप करना है, तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल C, करना पड़ेगा कंट्रोल C किया, हो गया। ओके, सो जब आप कंट्रोल C करते हो तो क्या होता है, LED के ऊपर कुछ नहीं है, क्योंकि आप कुछ नहीं सेंड कर रहे हो ना, तो यहाँ पे LED के ऊपर ऑफ हो जाएगा, LED गेट ऑफ। ऐसा अपना आर्डिनो में नहीं रहता, आर्डिनो में कंटिन्यूसली ब्लिंक किया तो ब्लिंक करते ही रहे, आप स्टॉप नहीं कर सकते, यहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट रनिंग द डिफरेंट प्रोग्राम्स, और ये से भी कर सकते हो कि आप ये प्रोग्राम में रन कर रहा हूँ, इसको मैं बैकग्राउंड में रन कर रहा हूँ, बिकॉज इट सपोर्ट द मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग भी सपोर्ट है, 2-3 प्रोग्राम एट अ टाइम वी कैन रन इट। एक प्रोग्राम कर रहा है कि इंटरनेट के ऊपर डेटा सेंड कर रहा है, एक प्रोग्राम सेंसर से डेटा ले रहा है, दूसरा जो डेटा, एक प्रोग्राम सेंसर से डेटा ले रहा है, दूसरा प्रोग्राम जो डेटा सेंसर से आया वो डेटाबेस में सेंड कर रहा है, तीसरा प्रोग्राम डेटाबेस में जो डेटा है वो अपलोड कर रहा है क्लाउड में। सो ऑल थिंग्स इज पॉसिबल इन दिस रास्पबेरी पाई, सब कुछ है। यस, So sir, if I want to glow this LED from the remote location, so how I can achieve this scenario? okay, so if you want to if you want to glow or if you want to blink this LED on a global or the remote location तो मतलब अभी देखो मैंने VLC कनेक्ट किया, VLC is only useful for the
लोकल कनेक्शन के लिए VNC है। तो इसी जगह मैंने यहाँ पे AnyDesk कर दिया। AnyDesk तो पता होगा आपको, AnyDesk। Yes. But each time I want to glow that LED. So for the each time I want to glow that LED, and I'm logging into the VNC and running this program. The same steps you have to carry it out. So I don't want to do that. So काय करायला लागतं, तुम्हाला स्टार्टअप मध्ये टाकावं लागतं. सपोज आपको क्या करना okay, है, but instead of that, I want something trigger. Trigger means what type of trigger you want? Just like switch? Miss some. I want. Yeah, right. I want something the switch like button or something, so that I can But where that switch trigger is that, located? so that LED will be glow. Yes, but where that switch Yeah, is located? something that. If the switch is located Yes, something like that. Can we do that? Yes, we can do. मी काय सांगितलं, तुम्ही काही करू शकता. You can do anything. Just you have to write the program for that. You can do anything for this. आप सिर्फ सोचो कि सर ऐसा करना है मुझे, पॉसिबल है क्या? All things is possible. All things is possible. इसमें तो इतना भी है कि आप अभी मैंने एक क्लाइंट का किया था, तो उसका रास्पबेरी पाई दिल्ली में था. अभी दिल्ली का रास्पबेरी पाई मैंने यहाँ पे उसका टर्मिनल मैंने दिया और यहाँ से प्रोग्रामिंग किया. And actually the Raspberry Pi is there and they are running, the Raspberry Pi is running there. वहाँ पे उसके आउटपुट एक्चुएटर्स के ऊपर वहाँ पे वो आउटपुट देख रहा था और मुझे बता रहा था कि ओके सर ये आउटपुट आ रहा है इस तरीके से, और मैं यहाँ पे उसका टर्मिनल में यहाँ पे एक्सेस कर रहा था. ऑल थिंग्स इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है. सिर्फ आपको वो पता होना चाहिए कि कैसे करना है. जैसे कि आपको मैंने जैसे AnyDesk से किया, तो AnyDesk से कर सकते हो, VNC से कर सकते हो. पुट्टी पता है, PUTTY, पुट्टी. यूजिंग द पुट्टी यू कैन ऑल्सो कनेक्ट दिस रास्पबेरी पाई. सिर्फ आपको एक बार टर्मिनल मिल गया ना आपको उसका, यूजिंग SSH ऑल्सो वी कैन कनेक्ट. SSH भी कनेक्ट, जैसे कि मैं SSH से कनेक्ट करके दिखाता हूँ आपको. ओके, आई कैन कनेक्ट. एक मैं आपको SSH से कनेक्ट करके दिखाता हूँ. बघा मी हे बंद करतो आहे, और VNC मैं यहाँ पे क्लोज किया और उसके बाद में मैंने टर्मिनल ओपन किया मेरे कंप्यूटर का. ओके, मैंने टर्मिनल ओपन किया. ओके, दिस इज माय टर्मिनल. टर्मिनल के ऊपर मैं क्या करूंगा, SSH pi@192.168.1.17. yes, and password is RASPBERRY. हो गया कनेक्ट. अब देखो, अभी ये देखो मुझे प्रॉम्प्ट आ गया. देखो, so if I'm doing ls, then the same thing, the same folders I can access, cd ganesh. और मुझे वही, अगर मुझे अभी blink का रन करना है तो मैं करूंगा python 3 blink.blink.py मैं करूंगा. so my blink get started. आप देख सकते हो मेरा कैमरा ऑन है, तो blink स्टार्ट हो तो गया. अगर हाँ, तो अगर ये रास्पबेरी पाई अगर मुझे यहाँ से एक्सेस करना है मेरे मशीन से, तो भी मैं कर सकता हूँ आपका जो रास्पबेरी पाई है अभी वहाँ पे. हाँ, अगर AnyDesk मुझे करना पड़ेगा, AnyDesk या टीम व्यूअर इस तरीके से करना पड़ेगा. एक्चुअली क्या है कि मेरा रास्पबेरी पाई को कौन सा IP एड्रेस है, लोकल IP एड्रेस है, LAN IP एड्रेस है. WAN IP एड्रेस नहीं है ना. WAN होता तो डायरेक्टली कर लेते आप. WAN होता तो डायरेक्टली कर लेते, नहीं तो आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ता है. देखो, आपको मोडेम में कोई सेटिंग करना पड़ता है, एंड यू हैव टू डू द पोर्ट फॉरवर्डिंग. पोर्ट फॉरवर्डिंग करके ना, ये SSH को जो भी पोर्ट प्रोटोकॉल दिया होता है, पोर्ट नंबर दिया होता है, उसका लोकल LAN टू WAN नेटवर्क, ये आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करना पड़ता है. और यूजिंग दैट पोर्ट फॉरवर्डिंग यू कैन एबल टू एक्सेस इट आल्सो. यस, ओके. कहीं पे भी कर सकते हैं, ऐसे नहीं है. इसको एग्जिट करना है, इस तरीके से एग्जिट करो. तो ये मेरा आ गया, ये मेरा लोकल नहीं, इसको एग्जिट या बाय करते हैं, बाय या BI नहीं, इस तरीके से नहीं, या कंट्रोल C जो है, कंट्रोल C नहीं, एग्जिट. हाँ, ये ओनली एग्जिट, नॉट फंक्शन, एग्जिट. ओके, तो इस तरीके से आई कैन कनेक्ट टू दैट रास्पबेरी पाई and I can do the programming. तो ये देखो, ये जो हमने अभी तक किया ना, पूरा हमने अभी तक जो किया, that is been
I'm teaching the same thing in our इंटर्नशिप प्रोग्राम. जैसे कल मैंने आपको बताया था कि देखो L1 नाम का एक लेवल 1 का एक इंटर्नशिप प्रोग्राम अपना इंटर्नशिप ऑन एम्बेडेड प्रोग्रामिंग यूजिंग आर्डिनो. उसमें ये जो कल मैंने बोला था कि आर्डिनो सिखाएंगे, उसके बाद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स एंड एक्चुएटर इंटरफेसिंग का प्रोग्रामिंग कैसे करती है पूरा सिखाएंगे. दिस इज माय L1 प्रोग्राम. L1 प्रोग्राम का फीस मैंने कल आपको बताया था 500 रुपीज एंड फॉर 4th June अप टू 350 रुपीज. L2 जो प्रोग्राम है ना, इन L2 प्रोग्राम एक्चुअली वी आर डूइंग द इंटरफेस इंटर्नशिप ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूजिंग आर्डिनो. ओके, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मतलब आर्डिनो को इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद में अगर मुझे उसके ऊपर कुछ भी प्रोग्रामिंग करना है, वाईफाई प्रोग्रामिंग करना है, MQTT प्रोग्रामिंग करना है, क्लाउड से डेटा उठाना है, क्लाउड के डेटा ऊपर डेटा सेंड करना है, कोई प्रोसेसिंग करना है, एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट करना है, ये सब कुछ ये लेवल 2 में सिखाया जाएगा. इसका जो ड्यूरेशन है ना, इसका ड्यूरेशन 10 डेज का है, लाइक 2 वीक्स. 10 days actually 2 weeks. 2 weeks का ड्यूरेशन है. The registration fee is 1000 rupees every day, the 2-hour session. लेवल 3 का भी प्रोग्राम है अपना. लेवल 3 इस प्रोग्राम इज द एक्चुअली द इंटर्नशिप ऑन रास्पबेरी पाई प्रोग्रामिंग. अभी ये थोड़ा बड़ा वाला प्रोग्राम, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू रास्पबेरी पाई बोर्ड, बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग. ये पाइथन प्रोग्रामिंग पूरा सिखाया जाएगा. जैसे कि मैंने अभी आपको डायरेक्टली प्रोग्राम दिखा, वैसे नहीं. इट स्टार्ट विद द प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट कैसे करेंगे, उसके बाद में इफ एल्स क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, ऑल द बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग वी विल सी. देन आफ्टर दैट हाउ टू इंटरफेस डिजिटल आईओ, एनालॉग आईओ कैसे इंटरफेस करेंगे, कैमरा मॉड्यूल का प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और वेब सर्वर कैसे क्रिएट करेंगे, उसमें डेटाबेस में कुछ डेटा सेंड करना है तो डेटाबेस प्रोग्रामिंग कैसे करेंगे, वाईफाई प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, क्लाउड प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और मेजर है आपका ओपनसीवी कंप्यूटर विजन. इसके ऊपर हम कैसे यूज करेंगे कंप्यूटर विजन, तो कंप्यूटर विजन का भी प्रोग्रामिंग यहाँ पे सीखेंगे. एंड वी आर इम्प्लीमेंटिंग द मिनी प्रोजेक्ट इसके ऊपर से. इसका जो फीस है ना 2000 रुपये फी है. इट इज हैविंग द 2000 रुपये फीस है. लेकिन उसका ड्यूरेशन अगर आप देखो ना तो 4 वीक्स का है, टोटल 4 वीक 20 डेज का है, 20 डेज का. सो दिस इज आवर एक्चुअली. और ये जो हम करेंगे ना, सो पूरे के पूरे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल. सभी का रिकॉर्डिंग्स हमारे एक वेबसाइट है careerlifestylehub.com. यू कैन विजिट दिस वेबसाइट ऑल्सो, careerlifestylehub.com. इसके ऊपर पूरा अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होती है. ओके, एंड ये मेरा हमारा टेलीग्राम चैनल है. अगर आप टेलीग्राम के ऊपर हो ना, तो ये यूजिंग दिस लिंक एक्चुअली यू कैन ज्वाइन the just take a snapshot of this, and after the session get over you can join this telegram channel. जो भी हमारे नए प्रोग्राम होते हैं ना, उसके ऊपर हम अभी भी पोस्ट करते रहते हैं. ओके, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो मैंने कल दिखाया था वही है. एंड दिस इज आवर कॉन्टेक्ट्स, so you can take again the screenshot of this one also. Yes, this is from me. Rupesh sir, now over to you. Okay, thank you, sir. Students, any doubts? If you have any question, you can ask. Okay, I think there is no question from participants. Yes sir. Okay, sir. Again, I have one question. Yes sir. Sure. जसं की काल तुम्ही सांगितलं की आर्डिनो जे आहे कशा प्रकारे आपण ऑनलाईन वेबसाईट थ्रू प्रॅक्टिकल्स घेऊ शकतो. सर रास्पबेरी पाय साठी काही प्लॅटफॉर्म आहे का सिम्युलेशन? नाही सर, रास्पबेरी पाय साठी प्लॅटफॉर्म नाही आहे. पण तुम्ही एक कारण याच्यात पायथॉन प्रोग्रामिंग आहे. आणि पायथॉन प्रोग्रामिंग तुम्हाला जर येते आहे तर तुम्हाला असं एक अजम्पशन करू शकता. आता म्हणजे हा कसा थोडा ऍडव्हान्स लेवलचा आहे, असं तुम्हाला आउटपुट दिसेलच असं तुम्ही अजम्पशन करू शकता की ओके मी एक त्याच्यावरती हाय पाठवलाय तर हाय जाईलच, असं एक अजम्पशन करू शकता. पण असं सिम्युलेशन नाहीये याच्यासाठी अवेलेबल. पण त्याच्याऐवजी आमच्याकडे एक कॉलेजमध्ये एकदा काय झालं होतं की एकच रास्पबेरी पाय होता आणि माझ्याकडे ना 5 ते 6 मुलं प्रॅक्टिकलला होते. पण त्यांना मी काय केलं होतं मग की रास्पबेरी पाय एक कनेक्ट केला आणि प्रत्येकाला SSH लॉग इन दिलं. ओके, प्रत्येकाला काय दिलं, स्वतःचं SSH लॉग इन दिलं आणि त्या SSH लॉग इन वरती त्यांना मी सांगितलं तुम्ही तुमचा प्रोग्राम करा, तुमचं फोल्डर क्रिएट करायचं आणि तुम्ही प्रोग्राम करा. आणि फक्त प्रोग्राम रन करताना फक्त कोण रन करताय ते मला अगोदर सांगा, कारण एका वेळेला एकच रन करता येईल प्रोग्राम. कारण डिव्हाइस लावलेला आहे, सपोज मी LED लावलेला आहे, तर मी एका स्टुडंट 1 ने जर रन केला तर त्याचा आउटपुट दिसेल, स्टुडंटने 2 ने रन केला तर तो स्टुडंट 2 चा आउटपुट दिसेल. कारण ऍट अ टाइम एकालाच फक्त GPIO वापरता येणार.
या टाइप मध्ये. म्हणजे हीच एक मेथड आहे. कारण की हा. मी हा प्रश्न याच्यासाठी विचारतोय सर. आता जो काही सिलेबस आहे, करिक्युलम आहे युनिव्हर्सिटीचा, त्यामध्ये पार्ट जे प्रॅक्टिकल्स आहेत ते रासबेरी पाय बेस्ड आहेत. हो. ओके. आणि हे जे काही लॉकडाऊनची सिच्युएशन आहे कोविडमुळे, तर यात प्रॅक्टिकल घेणं पॉसिबल होत नाहीये. म्हणजे थेरॉटिकली आपण जातो, पण प्रॅक्टिकली जसं आता आर्डिनोचं तुम्ही काल सांगितलं बरोबर, तर आपण अजून वेगळं असं काय, जसं तुम्ही हा एक वेळ सांगितला की अशा पद्धतीने आपण मुलांकडनं प्रॅक्टिकल करून घेऊ शकतो. बट मुलांकडे कसं आहे, सगळ्या मुलांकडे लॅपटॉप आणि डेस्कटॉप असणार याची गॅरंटी म्हणजे नाहीये जवळपास. कारण की बट सपोज मोबाईल तर सगळ्यांकडे आहे, तर मोबाईल आणि असं काही आपण कम्युनिकेशन करू शकतो का? मोबाईल वरती करू शकतो ना. हे जे मी व्हीएनसी व्ह्यूवर घेतलं बघा, हा. व्हीएनसी व्ह्यूवर हे लॅपटॉप व्हर्जन आहे, तसं व्हीएनसी व्ह्यूवर मोबाईल व्हर्जन पण येतं. ओके. माझे स्टुडंट मोस्ट ऑफ मोबाईल वरच करतात. ते काय करतात, मोबाईलचं हॉटस्पॉट त्याला देतात. ओके. आणि काय करतात, सेम नेटवर्क मध्ये आलं की व्हीएनसी व्ह्यूवर करतात आणि त्याचा आयपी ऍड्रेस टाकला की सेम हा. इथूनच टाईप करता, प्रोग्रामही इथूनच टाईप करता, रन पण इथूनच करता, सगळे इथूनच करता. ओके. म्हणजे VNC थ्रू करू शकतो. हो, व्हीएनसी व्ह्यूवर थ्रू आपण करू शकतो. फक्त लॅन मध्ये पाहिजे. ते एक सिंबल आहे की लॅन मध्ये पाहिजे, लोकल एरिया नेटवर्क मध्ये पाहिजे. एनी ओके. डेस्क लॅन मध्ये. नवनाथ सांगतो, एनी डेस्क भी यूज कर सकते हो. त्याच्यामध्ये जर एनी डेस्क असला ना, मग तुम्ही तर अजून एक चांगला आहे सर. म्हणजे तुमच्या कॉलेजमध्ये तुम्ही एक रासबेरी पाय चालू करून ठेवला, ओके, आणि घरी एखाद्या मुलाला सांगितलं की एनी डेस्कचा आयडी हा घे, याचा रासबेरी पायचा एनी डेस्कचा आयडी हा घे, आणि तू तो रासबेरी पायचा स्क्रीन तुम्ही तिथे ऍक्सेस करू शकतो. मग घरी बसून तो रासबेरी पाय जो कॉलेजमध्ये आहे तो पूर्ण ऍक्सेस करू शकतो. फक्त जे काही कनेक्शन आहे ते तुम्हाला तिथे करावे लागतील. कनेक्शन तो घरी नाही करू शकत. तुम्ही ते कनेक्शन करून ठेवायचं आणि त्यांना सांगायचं की तुम्ही प्रोग्राम रन करा, मग मी बघतो आउटपुट बरोबर येत आहे की नाही येत. ओके. म्हणजे एक मास्टर असणं गरजेचं त्या ठिकाणी, सगळं हार्डवेअर इंटरफेसिंग, आणि ऍज अ स्लॅब म्हणून स्टुडंट आपण त्या ठिकाणी वायरलेस थ्रू जॉईन करू शकतो. असं या टाइप मध्ये. ओके. म्हणजे जसं VNS व्ह्यूअर आहे त्याच प्रकारे दुसरं जे सांगितलं तुम्ही, त्याचे वर्किंग त्याच मेन आहे का? एनीडेस्क किंवा टीम व्ह्यूवर तुम्ही कधी वापरला का? एनीडेस्क टीम व्ह्यूअर वापरलेलं आहे. हा, मग टीम व्ह्यूवर पण करता येतो त्यामध्ये इन्स्टॉल. टीम व्ह्यूवर एकदाच इन्स्टॉल केलं ना सर, तर टीम व्ह्यूवर तर मग बेस्ट आहे उलट. ओके. टीम व्ह्यूअर. टीम व्ह्यूवरने पण, कारण टीम व्ह्यूवरचं मोबाईल मध्ये पण असतं टीम व्ह्यूवर. हो. कुठून पण ऍक्सेस करू शकतो आपण, कुठूनही काही. म्हणजे त्यावेळी आपण हे करू शकतो. अजून म्हणजे मार्केटमध्ये रासबेरी पायचे सिम्युलेटर नाही, म्हणजे विद्यार्थ्यांसाठी, आम्हाला प्राध्यापकांसाठी एक ऑपॉर्च्युनिटी आहे की आम्ही सिम्युलेटर तयार करू शकतो बा. हा, करू शकतो ऍक्च्युली. हा, करू शकतो ना सर, का नाही करू शकत. फक्त त्याची प्रोग्रामिंग करावी लागेल की हा प्रोग्राम जो तुम्ही रासबेरी पायला प्रोग्राम दिल्यानंतर जे आउटपुट येतं तेच आउटपुट त्यांना तिथे दिसायला पाहिजे. हो, बरोबर. सगळंच तर नाही दिसणार, काही छोटे छोटे काही, जसं की याच्यामध्ये आपण टिंकरकॅड मध्ये सगळे डिव्हायसेस नाहीये, तसे काही डिव्हायसेस साठी तुम्ही करू शकता. जसं एलईडी स्विच, असे काही IR LED, IR सेन्सर, असे काही ते छोटे छोटे डिव्हाइस आहे ना, त्यांच्यासाठी तरी तयार केलं तरी भरपूर आहे. ओके. हा, म्हणजे समथिंग इज ऑलवेज बेटर दॅन नथिंग, like that. Yes, Okay, I am again request to all participant, if you have any question, you can ask. Otherwise, we conclude the session. Yes, sir. चौधरी सर, कसं झालं सेशन? चौधरी सर आहेत का? ओके. आय थिंक देर इज नो क्वेश्चन. माईक म्यूट करून ठेवा लागतो, कारण बारीक सारा नॉईज झाला ना, बारीक सारा नॉईज आला आणि मग ते हायलाइट होत असतो, मग माईक म्यूट करून ठेवलेला असतो. हो 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 हो. आणि मोठा स्क्रीन असल्यामुळे लांबून बसलं तरी दिसतं. बरोबर आहे. संजय चौधरी सर इज अ टेक्नो-सॅव्ही पर्सन. यस यस, खूप टेक्नो-सॅव्ही. आमच्यासारखे जे नवीन इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड मध्ये काम करतायत ते आमचे गुरुच एका प्रकारे. प्रत्येक जण गुरु आहेत. सगळ्यांचे गुरु असतात सर. तुमच्यापासूनही आम्हाला खूप काही शिकायला मिळेल उमेश सर. तर एखादा सलूनवाला असतो ना, त्या सलूनवाल्याला पण भरपूर काही ना काही टिप्स माहिती असतात. हो. पण कदाचित त्याला रिप्रेझेंट करता येत नाही, असं होतं. शेतकऱ्याला भरपूर टिप्स माहिती असतात. हो. आणि आपल्या सगळ्यांचा मास्टर गुरु म्हणजे गुगल. हो, ते तर आहे. गुगल तर सगळ्यांना. आणि मुलांना तर आम्ही सांगतो ना नेहमी की आता मी